Hello, good evening everyone. Myself Pawan Jain. I am senior research analyst at Stockage. So today's topic is we will cover four features from Stockage that are market breadth, derivative analytics, sector rotation, and sector analytics. These are the four features that we will cover today. So let's start with market breadth. So what is market breadth and how we can use this in market? So market breadth basically can help us to sense the market, how the market is behaving right now. So these are the indicators on the, these are the indices on the left side. And these are the criterias that are fulfilled by the stocks within that indices. So top of that, Nifty 50, how many percentage of stocks from Nifty 50 that are trading above RS 55? 78% stocks are above SMA 20, SMA 50 के ऊपर 88% stocks and 86% stocks are above 100 and 200 SMA के ऊपर 88% stocks है. So by clicking here, we can check the breadth of indices of Nifty 50 on day-to-day basis. So basically we can see कि जो from 4th-5th June से जो dip आया था market में जहाँ पे breadth खराब हो गया था, now after onwards 6th June it started moving on the upside. That means strong strength was there, but from last few days not too many stocks from Nifty are trading above or trading above the RS 55 zone की strength नहीं है कि Nifty 50 के जो stock है 50 stocks उसमें से only 44% stocks are beating Nifty in return wise. So एक बार Nifty का chart जाके देखते हैं. So see from 4th June as data shows Nifty started showing strength और वो अपने चार्ट पे भी दिख रहा था. From last few days Nifty ओपन ऊपर हो रहा है पर नॉट एबल टू क्लोज अबव इट्स ओपनिंग एरिया. और सेम थिंग वी कैन सी कि नहीं निफ्टी में अभी काफी स्टॉक्स है जो निफ्टी के रिटर्न को बीट नहीं कर पा रहे हैं. अगर थोड़ा ब्रॉडर व्यू देखना है देन वी कैन चेक निफ्टी 500 दैट कैन गिव अस मोर ब्रॉडर व्यू कि निफ्टी 500 स्टॉक्स में क्या हो रहा है. सिमिलरली वी कैन चेक कि जो स्ट्रेंथ था कुछ दिन पहले 10th 11th 12th 13th 14th जून को वो स्लोली थोड़ा थोड़ा वीक होना स्टार्ट हो गया है. जो शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक्स जो 80-90% ऊपर थे वो भी धीरे धीरे कम. तो ब्रॉडवेज रैली नहीं है, हर जगह हर सेक्टर पे रैली नहीं है. और अगर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं सो सी कि निफ्टी पीएसयू बैंक्स, तो निफ्टी पीएसयू बैंक पूरा अंडर परफॉर्म कर रहा है. ओनली 8% स्टॉक आर above RS 55, SMA 20 and 50. So only 8% stocks that are above the short-term averages that are 20 and 50. So these are the sector where we should not focus. Our focus only should be where which indices are doing good. Similarly, we can check कि Nifty Private Bank is doing better than Nifty PSU Bank. Also, we can check that also in trading view कि उनका चार्ट कैसा है. See, Nifty Bank is doing good. PSU बैंक इंडेक्स इतना अच्छा नहीं है, वो आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे. तो हम लोग को भी फोकस कर रहे हैं rather than focusing on PSU banks, we should focus on private banks. So this way the breadth can help us in which indices we should focus. Next is periodical high low. Periodical high low is basically by default यहाँ पे एक 1 year default by default रहता है. You can check 3 month, 1 month and 6 month also. And by clicking on Nifty 50 you can check day by day periodical high low of Nifty. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई भी स्टॉक जो लो जोन पे नहीं है, 24 stocks out of Nifty 50 are in mid zone and 26 stocks are in high zone.
तो ये थोड़ा कॉन्ट्रा इसको यूज कर सकते हैं कि जब लो जोन में स्टॉक्स है ही नहीं तो देर इज ए प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी थोड़ा पुल बैक हो या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए। ये हो सकता है इन कमिंग डेज, दैट कैन हैपन। सिमिलरली वी कैन चेक निफ्टी आईटी में क्या हो रहा था। सो सी जहाँ पे निफ्टी आईटी में फ्रॉम 3 जून जो लो जोन पे 3-4 स्टॉक्स थे, फिर स्लोली स्लोली जो 10 स्टॉक्स थे मिड जोन में, हाई जोन में कुछ भी नहीं था, नॉट ए सिंगल स्टॉक was in high zone. From 5th June, 3 stocks were there, 8 stocks on 6th June, 7th June। धीरे धीरे जब हाई जोन पे स्टॉक्स आने लगे तो आप बोल सकते हो कि नहीं, स्लोली स्लोली निफ्टी आईटी इज परफॉर्मिंग बेटर। सो दीज आर द एरिया वेयर we can focus on. And last part is advance and decline, कि how many stocks from Nifty 50, Nifty 500 are trading above or trading in green or closed in green or not. So you can check on daily basis also, and you can check also on the basis of monthly also. So this is basically the market rate, कि इससे मार्केट का एक सेंस पता, अंडरटोन पता चलता है कि कहाँ पे मार्केट पे फोकस करना है। मार्केट बढ़ रहा है तो कौन से इंडाइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा फोकस करनी है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन अगर है तो इस पे ले लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। ऑल इफ यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मार्केट ब्रेथ, देन वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट। Don't think there is any question. Okay, so let's move to the next part, that is derivative analytics. So derivative analytics basically यहाँ पे So Pawan, before we yeah, move to that, can you just take a few questions, please? everyone is telling to repeat. Okay, let me repeat it once also. Market breadth is basically on the left side we can check all the indices and we can see कि Nifty 50 is not performing that well, और इन सारे indices में से Nifty PSU बैंक we should avoid because most of the stocks are trading below its short-term moving averages like SMA 20, SMA 50. But Nifty Private Bank is doing better. 90% stocks are trading above SMA 20. So our focus should be on strong sector or strong indices where the traction is. Nifty Auto is doing better. Okay. Nifty IT, on by clicking here, you can check the breadth also. From 28th June, Nifty IT has started मूविंग ऑन द अपसाइड। सो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ आ रहा है, तो एक बार निफ्ट CNX IT को भी देख लेते हैं। सी फ्रॉम 24th 25th June द इंडाइसेस इज डूइंग मच बेटर देन निफ्टी। सो कहाँ पे फोकस करना है, कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है, बाई व्यूइंग ऑल दिस डेटा कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स एंड द इंडाइसेस। ओके, दिस PSU बैंक इज डूइंग गुड फॉर बाइंग एज ऑफ नाउ फॉर शॉर्ट टर्म। PSU बैंक से ज्यादा अच्छा है कि प्राइवेट बैंक, बिकॉज प्राइवेट बैंक में स्ट्रेंथ दिख रहा है। So what is RS 55 only? RS 55 means its relative strength of last 55 days. In last 55 days, how much percentage of gain Nifty has given, and stocks that are uh, gained or that are moving more than Nifty, that means these are RS पॉजिटिव स्टॉक्स। जो जो स्टॉक निफ्टी को बीट किए हैं ऑन द परफॉर्मेंस बेसिस इन लास्ट 55 ट्रेडिंग डेज, दोज आर कॉल्ड RS 55 पॉजिटिव स्टॉक्स। ओके, how to prepare myself for tomorrow? Yeah, you can prepare yourself for tomorrow. This is the data of previous day of 3rd July, and we can clearly see that Nifty IT is doing good. And now you can make a watch list of your IT stocks. Here are the IT stocks, and create a watch list and see which are the stocks that are
doing good, you can go to technicals. These are the stocks. You can go to technicals. These are the indicators. These are the chart of the Nifty IT. These are the stocks. Focus on gainers, which are the stocks have gained in 1 and 5 days. So persistent is gained more than 20% on weekly basis. So let's check persistent. See, जो 24 जून से आ रहा था डेटा कि नहीं निफ्टी आईटी इज डूइंग गुड, तो ये स्टॉक मेरे फोकस पे रहना चाहिए था कि ये निफ्टी आईटी को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं. तो बाय दिस वे यू कैन identify strong indices and you can keep close watch on the stocks that are doing good in that particular indices. Okay. Yes, sir. For next day, you can track which are the indices are doing good and find out stocks from that particular sector. Okay. So now we can move to the next part, that is derivative analytics. So in derivative analytics, these are the F&O stocks. This is OI trend, spot price, cumulative OI and volume and delivery. तो यहाँ पे दिखाएगा कि एग्रेसिव न्यू शॉर्ट क्यों हुआ था, क्योंकि प्राइस वाज डाउन, क्यूमुलेटिव ओआई वाज अप एंड वॉल्यूम एंड डिलीवरी इज शोइंग कि लास्ट 5 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है उसका 2.2 टाइम्स हुआ था एंड द लोअर पार्ट इज डिलीवरी कि लास्ट 5 डेज का जो एवरेज डिलीवरी है उसका 2 टाइम्स हुआ था. एज निफ्टी इज ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई, सो वी बेसिकली फोकस ऑन एग्रेसिव न्यू लॉन्ग स्टॉक्स. कि निफ्टी ऊपर है तो अभी देखते हैं कि कौन से stocks aggressive long hai. You can also filter new long, aggressive new short, long cover. These are the filter you can use according to your trading style. Also, you can download the data from here. Okay. So I am choosing aggressive new long and my focus will be on the stocks where जहाँ पे डिलीवरी और वॉल्यूम काफी ज्यादा हुआ था. सो आई कैन सी इन ग्लेनमार्क जहाँ पे एग्रेसिव न्यू लॉन्ग था एंड डिलीवरी भी काफी ज्यादा हुआ था उस पे. सो लेट्स चेक एक बार ग्लेनमार्क. एक बार डेटा आपको मिल गया, वंस यू हैव द डेटा, नाउ focus on price action. If price action is there and data is also suggesting the same, then only we will trade the stock. See, yesterday ग्लेनमार्क में डेटा आ गया था कि द स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग और उस पर एग्रेसिव न्यू लॉन्ग भी हुआ था, डिलीवरी एंड वॉल्यूम भी ज़्यादा था, प्राइस भी ऊपर गया, क्यूमुलेटिव ओआई भी ऊपर था. सो आई गॉट द स्टॉक ऑन 3rd July and today the stock has moved almost 1%. On going on the long side, this stock should be in my watch list. Okay. Next is options. In options यहाँ पे पीसीआर डेटा मिल जाएगा, चेंज इन पीसीआई. पीसीआर इज बेसिकली पुट बाय कॉल रेशियो, हाउ मेनी पुट्स आर रिटन बाय द बिग हैंड्स और कितने कॉल राइटिंग हुए थे. तो यहाँ पे अगर क्लिक करें तो आपको डे बाय डे पीसीआर का डेटा मिल जाएगा, क्यूमुलेटिव कॉल ओआई एंड क्यूमुलेटिव पुट ओआई. इफ पुट ओआई इज हायर देन कॉल ओआई, दैट मीन्स पीसीआर इज ग्रेटर देन 1. तो ग्रेटर देन 1 हो गया मतलब मोर पुट राइटर्स आर एक्टिव इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि पुट राइटर्स विल ट्राई कि स्टॉक ऊपर जाए तभी उनको फायदा होगा. अब और एक चीज देख सकते हैं कि कब से ना पीसीआर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ. तो इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन मदरसन सुमी, जो ट्रेंड था पीसीआर का वो यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ. फ्रॉम 18th जून जो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, वो आज भी पीसीआर धीरे धीरे इसमें और बिल्डअप हो रहा है. पुट राइटर्स आर मोर एक्टिव इन दैट particular stock. So let's check
Motherson ones. See, काफी दिनों से मदरसन ऊपर जा रहा है, एक बार 2 दिन का डिप आया था इस पे. अगेन द स्टॉक हैज स्टार्टेड इट्स अपवर्ड जर्नी. लेट्स चेक वन मोर स्टॉक. अभी बात की थी हम लोग कि नहीं, आईटी अच्छा लग रहा है, मार्केट ब्रेड से पता चला कि नहीं, आईटी इंडाइसेस इज डूइंग गुड, सो परसिस्टेंट इज देयर. सो लेट्स चेक व्हाट्स हैपनिंग इन परसिस्टेंट. सी, from 0.60 0.53 the data is improving slowly. More put writers are active in persistent. So persistent चेक कर ही लिए थे, और एक बार दिखा देता हूँ कि जो डेटा यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ फ्रॉम 28 जून से पीसीआर ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ, और सेम उसी दिन से ये स्टॉक भी स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट हुआ. सो दिस वाज द एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, and on 28th June at the end of the day we got the data कि पीसीआर अच्छा है और इंडाइसेस भी अच्छा कर रहा है आईटी. सो दिस स्टॉक शुड बी इन आवर रेडार. ऑन नेक्स्ट डे आप लोग प्रिपेयर हो सकते थे कि नहीं, मेरे को स्टॉक मिल गया, इंडाइसेस भी अच्छा से मिल गया, जब भी इस पे ब्रेकआउट आएगा तो मेरे को लॉन्ग ही जाना है. इस दिन आपको स्टॉक मिला 28 जून को. ऑन 1 जुलाई वी कैन टेक द स्टॉक ऑन द लॉन्गर साइड. इस पे एक लॉन्गर व्यू बना सकते थे. तो आफ्टर ब्रेकआउट द स्टॉक हैज ऑलरेडी मूव्ड मोर देन 7%, near about 7%. So this is a good move in 3 days for a FNO stock. So by using or by combining these two data, options and future, हम लोग एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं. वी कैन फिल्टर स्टॉक्स कि कहाँ पे लॉन्ग जाना है या कहाँ पे शॉर्ट जाना है. Once we have the data, create a watch list or make a watch list and track them in live market. Whenever there is setup, you can trade accordingly. Okay. Now let's take few questions, then we will cover the next part. PCR increasing means कि पुट राइटर्स ज्यादा एक्टिव है. दिस इज ए पॉजिटिव साइन बिकॉज पुट राइटर्स चाहेंगे कि नहीं प्राइस ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा तो ही जो पुट राइटर्स ने राइट किया था उसका प्रीमियम कम होगा, तो उनको बेनिफिट होगा. डू वी हैव पीसीआर इंडिकेटर? यस, यहाँ पे है पीसीआर इंडिकेटर ऑन ऑप्शंस. यहाँ पे आप पीसीआर देख सकते हो कि पीसीआर क्या है, पीसीआर का ट्रेंड क्या है. इफ पीसीआर इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स मोर पुट राइटर्स आर एक्टिव ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स. ग्रेसिम, अंबुजा सीमेंट, मदरसन सुमी, यहाँ पे पीसीआर बड़ा था प्लस प्राइस भी बढ़ा. दैट मीन्स पीसीआर प्रीवियस डे का जो पीसीआर था वो 0.06 बढ़ा है. एंड वी कैन चेक बाय क्लिकिंग हेयर. जो 1.04 था 0.06 से बढ़ के 1.10 पे आ गया. सो यू कैन चेक दिस एंड दिस रो, पीसीआर एंड पीसीआर चेंज वन डे. No, you cannot put PCR on chart in stockage. So put sellers are not going long, put sellers are going short. Basically, they are shorting put. That means their view is on the longer side. If PCR fluctuating on daily, yeah, PCR का fluctuation daily basis पे तो होगा ही. तो पीसीआर का चेंज तो होगा ही ऑन डेली बेसिस पे, तो वो ईओडी बेसिस हम लोग को पूरा डेटा मिल जाएगा. ओके. Let's take one or two questions more. Yeah, if PCS is going above 1, that means जो पुट राइटर्स है उनका क्वांटिटी ज्यादा है. मोर पुट राइटर्स आर एक्टिव देन कॉल राइटर.
और वो डेटा यू कैन चेक फ्रॉम हियर. दिस इज cumulative call OI and this is cumulative put OI. We can clearly see cumulative put OI is far more than call OI. Okay. Okay. I think we can move forward. Let's take now sector rotation. So sector rotation का दो लेवल है. This is basically level 1 जहाँ पे हम लोग को ओवरव्यू दिख जाएगा. ब्रेथ ऑफ सेक्टर्स, डिलीवरीज ऑफ सेक्टर और VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. दिस इज बेसिकली इंडिकेटर कि how many stocks from that particular sector is above or below VWAP. अगर VWAP के ऊपर है that means वो अपने VWAP वॉल्यूम के ऊपर है, तो दिस इज पॉजिटिव साइन, वहां पे फोकस करना है. इफ somebody is focusing on VWAP indicator they can use this. और डिलीवरी के बेसिस पे कौन कौन से सेक्टर पे, यहाँ पे देख सकते हैं कि शिप बिल्डिंग सेक्टर पे प्राइस पूरा इंडेक्सेस ऊपर था, वॉल्यूम वाज हायर एंड डिलीवरी भी लास्ट 5 डेज का जो एवरेज डिलीवरी है और एवरेज वॉल्यूम है उससे हायर था. सेम इन बैंकिंग ऑल्सो, इन अल्कोहल ऑल्सो. अब आ जाते हैं मार्केट ब्रेथ में कि मार्केट ब्रेथ से, सॉरी ब्रेथ से, सेक्टर के ब्रेथ से कैसे सेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो एट द टॉप एब्रेसिव इज देयर. 100% stocks from that particular sector is trading above all the criterias that are RS55, RSI. सारे स्टॉक्स का 50 के ऊपर है, SMA 20, 50, 100 के ऊपर सारे स्टॉक्स है. नेक्स्ट इज शिप बिल्डिंग. शिप बिल्डिंग काफी स्ट्रांग है. बाय क्लिकिंग हेयर हम लोग को एंटायर शिप बिल्डिंग का एक ब्रेथ मिल जाएगा कि ये सेक्टर काफी दिनों से स्ट्रांग है. तो जो सेक्टर काफी दिनों से स्ट्रांग है उस पर हम लोग को लॉन्ग ही जाना है, उसको शॉर्ट नहीं करना है. बेसिकली वी शुड नॉट short the stocks that are from strong sector. Now we can go to technicals, check the EMA. This is basically EMA. And what are the EMAs? The EMAs are 5, 20, 50, 100 and 200. तो जो स्टॉक सारे EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, that means in short term also the stock is very strong. Basically Mazagon Dock, Cochin CPR, GRSE, these are the stocks that are trading above all the EMA. And after that data you can check all the stocks, GRSE. All the stock has moved today also. कोचिन, कल एक ब्रेकआउट था कोचिन पे, एक फ्रेश ब्रेकआउट आया कोचिन पे और आज एक फॉलो थ्रू बाइंग भी आ गया. सो बाई फोकसिंग ऑन स्ट्रॉन्ग सेक्टर कौन से ब्रेकआउट को प्ले कर रहे हैं आप वो भी देख सकते हो कि नहीं. इस पे ब्रेकआउट आया कोचिन सीपीआर पे एंड कोचिन सीपीआर इज फ्रॉम द सेकेंड टॉप सेक्टर. तो इस सेक्टर पे मेरे को फोकस करना है और इस स्टॉक्स को मिस नहीं करना है. नेक्स्ट और नीचे जाके देखते हैं कि कौन से सेक्टर में. और इसी तरीके से आप लोग लास्ट 7 दिन का डेटा भी देख सकते हो कि क्या हुआ था. लेट्स से 1 जुलाई को क्या हुआ था. वहां पे भी शिप बिल्डिंग स्ट्रांग था, सबसे ऊपर था. ऑन 26 जून यहाँ पे भी सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर शिप बिल्डिंग ही था. इसी तरीके से वी कैन चेक लास्ट 7 डेज का डेटा कि उस सेक्टर में क्या हुआ. और थोड़ा नीचे आके देखते हैं कि और क्या क्या स्टॉक है जो कि स्ट्रांग हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक इज देयर. एक बार देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है. सी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ब्रेथ है वो धीरे धीरे, जो 95% स्टॉक्स वेर अबव 20 SMA, वो धीरे धीरे थोड़ा नीचे की तरफ आया है. अब टेक्निकल्स में जाके देखते हैं कि विच आर द स्टॉक्स वो नीचे आए. सी पॉलीकैब, फिनोलेक्स केबल. सो ब्रेथ मेरे को पहले ही दिखा दिया कि यहाँ पे धीरे धीरे वीकनेस स्टार्ट हो रहा है, तो इस पे अभी थोड़ा वेट करना है. जब once the market breath again reverses from here and showing strength, then we will focus on these stocks or on these sectors for going long. In banking, see
बाय क्लिकिंग हियर दिस इज लेवल 2 डेटा, वहां पे जब भी क्लिक करेंगे तो सी पब्लिक बैंक जो पीएसयू बैंक्स है दैट आर नॉट डूइंग दैट गुड। एक बार यहाँ पे क्लिक करके इसका ब्रेथ देख लेते हैं। जो सेक्टर पे 80 85% 97% स्टॉक्स थे जो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आरएस के ऊपर भी थे। नाउ सी हाउ द डेटा हैज चेंज्ड फ्रॉम 21 जून। यहाँ से धीरे धीरे डेटा वीक होना स्टार्ट हो गया। सो हम लोग को प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ज्यादा फोकस करना है और पब्लिक बैंक्स पे कम फोकस करना है। ये मार्केट ब्रेथ मेरे को क्लियरली दिखा, सॉरी ये सेक्टर ब्रेथ मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है। फ्रॉम 20th जून ये डेटा और धीरे धीरे स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया और अभी तक वो स्ट्रांग ही चल रहा है। फ्रॉम 14th जून से ऑलमोस्ट 99% स्टॉक्स जो कि 20 और 50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर थे। अब एक बार जाके स्टॉक्स को देख लेते हैं, विच आर द स्टॉक्स दैट आर शोइंग स्ट्रेंथ। सो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, these are the stocks, AU Small Finance Bank, these are the stocks that are doing good. Let's check ICICI Bank once. And let's check कि कब से डेटा स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया। यहाँ से 6 जून, फिर बड़ा एक डिप आया अगेन फ्रॉम 18 19 20 जून से ये डेटा फिर स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं चार्ट में क्या हो रहा है। तो दिस इज 18 जून 19 जून, यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी था। तो जब ये डेटा स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया, डेटा हैज स्टार्टेड शोइंग स्ट्रेंथ फ्रॉम 18th 19th एंड 20th जून, और मेरे को पता चल गया कि नहीं इस सेक्टर में स्ट्रेंथ आ रहा है। तो ऑन 24th जून I can go and take this kind of breakout trades because the private sector banks are showing strength instead of PSU banks. इतना दिन क्या हो रहा था, PSU banks were leading, पर अभी उल्टा हो रहा है, प्राइवेट बैंक्स आर डूइंग मच बेटर देन PSU बैंक्स। सो इसी तरीके से आई कैन मेक ए वॉच लिस्ट ऑफ माई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड आई कैन सेट अलर्ट अबव द ब्रेकआउट जोन कि मेरे को लाइव ट्रेडिंग मार्केट में वो स्टॉक्स का एक अलर्ट आ जाए एंड आई कैन टेक ट्रेड। तो दिस इज बेसिकली द सेक्टर रोटेशन। इट कैन हेल्प अस टू फाइंड आउट स्ट्रॉन्गर सेक्टर्स और उस स्ट्रॉन्ग सेक्टर में जाके यू कैन चेक कि कौन कौन से स्टॉक्स दैट आर परफॉर्मिंग better than the entire sector. Okay, now let's take few questions. 75-minute chart, yeah, you can also check 75-minute chart. ये रहा 75-minute chart। तो यहाँ पे जाके जब भी ब्रेकआउट आया यू कैन टेक ट्रेड। हाउ टू एंटर एंड एग्जिट ऑन दिस बेसिस, यस सर, फॉर एंट्री एंड एग्जिट आप देखो कि आपको प्रायर एक सेक्टर मिल गया कि मेरे को आई हैव टू फोकस ऑन बैंकिंग सेक्टर एंड फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर द प्राइवेट बैंक्स आर डूइंग गुड। वंस वी हैव द डेटा ऑन 20th जून, 20 जून को आपको डेटा मिल गया और ये ब्रेकआउट आ रहा था 24th जून को। तो 24th जून को जब भी आपको ब्रेकआउट मिला और 24th जून को भी आप देखो ऑन 21st जून दैट डेटा वाज स्ट्रांग ऑन फ्राइडे। और नेक्स्ट डे जो ट्रेडिंग डे था 24th जून का, आपको ब्रेकआउट मिला, देन यू कैन एंटर द स्टॉक। Yeah, we can, yeah, Siva sir, we can take top sectors and stocks for long position. Someone is saying how to check the sector is going to in correction. Let me show you. What happens to banks? See, by
टिल 19th एंड 20th जून पूरा पब्लिक सेक्टर का डेटा काफी स्ट्रांग था, एंड स्लोली स्लोली जो ब्रेद है सेक्टर का वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हुआ। 24th 25th जून से तो और भी वीक हो गया। तो जब डेटा वीक हो रहा है, एंड यू कैन चेक on your chart also, when data and breadth is showing weakness, then we can avoid or book profit from that particular sector and these stocks। एग्जिट कब करना है? एग्जिट आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे करना है, और जहाँ पे डेटा वीक हो रहा है वहां पे आपको अवॉइड करना है। या तो आप प्रॉफिट बुक करो, या आपके ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से आप एग्जिट करो। ओके, आई थिंक वी कैन मूव टू द लास्ट फीचर और लास्ट टॉपिक, दैट इज सेक्टर एनालिटिक्स। सो सेक्टर एनालिटिक्स इज बेसिकली, हम लोग इतना देर जो भी देख रहे थे दैट कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, दैट वाज ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, कि टेक्निकल के बेसिस पे विच आर द सेक्टर एंड स्टॉक्स आर डूइंग गुड। इन सेक्टर एनालिटिक्स वी कैन फिगर आउट सेक्टर्स दैट आर डूइंग गुड ऑन फंडामेंटल बेसिस ऑल्सो, कि रिजल्ट देख सकते हैं क्वार्टरली एंड एनुअली विच आर द सेक्टर्स जहाँ पे रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है। तो अभी जून मंथ एंड हो गया है, तो क्वार्टर एंड जून का जो रिजल्ट होगा वो धीरे धीरे जब भी स्टॉक्स अपने रिजल्ट डिलीवर करने लगेंगे तो वहां पे आ जाएगा। अभी लास्ट मई तक, सॉरी मार्च तक का डेटा है। सो बाय स्क्रॉलिंग डाउन वी कैन चेक कहाँ पे डेटा काफी स्ट्रांग था या कहाँ पे रिजल्ट काफी स्ट्रांग आया था। ये यू वी कैन चेक सेल्स डेटा, एबिटा डेटा एंड पैट डेटा। दीज आर द थ्री डेटास दैट वी कैन चेक ऑन क्वार्टरली एंड एनुअल बेसिस। आई एम checking quarterly basis, and banking is there। You can check the trend कि बैंकिंग में ट्रेंड क्या हुआ था। स्लोली स्लोली द सेल्स इज इम्प्रूविंग इन द entire banking sector। And which are the stocks that are doing good in banking sector? HDFC बैंक, जिसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% का ग्रोथ आया था। ICICI बैंक सोन्ड 4.3% का ग्रोथ। सो इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, जो लोग फंडामेंटल को ट्रैक करते हैं, वी कैन कंबाइन फंडामेंटल एंड टेक्निकल ऑल्सो। कि टेक्निकली अभी प्राइवेट बैंक्स अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उसका सेक्टर का ब्रेथ अच्छा है, सेक्टर का स्ट्रेंथ अच्छा है। अब देखते हैं कि फ्रॉम दिस सेक्टर्स विच आर द स्टॉक्स दैट आर टेक्निकली लुकिंग गुड, एंड ऑल्सो सेल्स और पैट का ग्रोथ भी काफी अच्छा है उसमें। तो बैंकिंग में सेल्स ग्रोथ तो देख लिए, आईसीआईसी बैंक का अच्छा था, उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा है। स्लोली स्लोली इसका प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग कैन हेल्प अस टू फिल्टर आउट स्टॉक्स, कहाँ पे कौन से सेक्टर पे प्रोमोटर, एफआईआई एंड डीआईआई, दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी कैन चेक कि इनका होल्डिंग कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। इन केमिकल्स ओनली वन स्टॉक आउट ऑफ 272 स्टॉक्स हैव पब्लिश्ड इट्स शेयर होल्डिंग। तो अभी सारे स्टॉक तो नहीं आएंगे, धीरे धीरे जैसे आता जाएगा डेटा, और तो ये डेटा आपको और क्लियरली दिखता रहेगा। इन लॉजिस्टिक सिर्फ एक स्टॉक आया है। सो वी कैन चेक कि एफआईआई का डेटा कहाँ पे, सॉरी एफआईआई का होल्डिंग कहाँ पे बढ़ा है या गिरा है, इस डेटा से आपको पता चल जाएगा। तो सेक्टर एनालिटिक्स बेसिकली हम लोग को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई सेक्टर जहाँ पे सेल्स ग्रोथ, पैट ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ काफी अच्छा था, और हम लोग प्रोमोटर, एफआईआई एंड डीआईआई के बेसिस पे भी सेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन है तो वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस, देन आई विल कंक्लूड माय सेशन। How to find sector analytics? Sir, you can find it from here by clicking here. You can come to sector analytics, and these are the features that you can use.
Where is PCR? PCR data, PCR डेरिवेटिव एनालिटिक्स में होगा सर. दिस इज बेसिकली सेक्टर एनालिटिक्स. ये सेक्टर रोटेशन पे वीवैप और डिलीवरी दिखाया ना मैंने. लेट्स मूव और एक बार दिखा देता हूँ. इन डिलीवरीज यहाँ पे दिखाया था ना कहाँ पे डिलीवरी और वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है. सी बैंकिंग में वॉल्यूम एंड डिलीवरी वाज हायर एंड क्लिक हियर एंड चेक व्हिच आर द स्टॉक्स दैट हैव सोन. HDFC बैंक में हायर वॉल्यूम था, डिलीवरी भी ज्यादा आया था. और कौन सा स्टॉक था? फेडरल बैंक में 2x डिलीवरी हुआ था. तो एक बार देखते हैं कि फेडरल बैंक कैसा परफॉर्म किया. फेडरल बैंक ने कल ब्रेकआउट दिया और अभी जस्ट ब्रेकआउट के पास ही ट्रेड कर रहे हैं. ओके. So by clicking on deliveries, this can help us to find out sector and stocks where delivery and volume are higher. और वीवैप पहले ही सबसे पहले कवर कर लिया था कि वीवैप की इंडिकेटर है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, कि उस इंडिकेटर के ऊपर जैसे SMA होता है वैसे ही वीवैप है. हाउ मेनी स्टॉक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर आर ट्रेडिंग अबव और बिलो. अप मीन्स ऊपर वीवैप के ट्रेड कर रहे हैं. लाइक शिप बिल्डिंग 67% स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबव वीवैप. So by clicking here, go to technicals and check which are the stocks. Masgao, Cochin, these are the stocks that are doing good. Okay. So sector analytics के ऊपर और कोई क्वेश्चन तो लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं. Started position. या इंस्टीट्यूशनल होल्डर और FII अभी जो पोजीशन बना रहे हैं, अब धीरे धीरे जितना डेटा आता जाएगा वो हम देख सकते हैं कि कहाँ पे FII या DIIs ने पोजीशन बिल्ड की है या कम की है. Okay, thank you everyone. This is from my side. Now Raju sir will take the next part. Raju, are you there? जी 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 भैया हूँ. हाँ राजू सर, आप चलो लो हम. जी जी. ओके. थैंक यू एवरीवन. बाय. हेलो एवरीवन. मेरी वॉइस क्लियर है सबको? एक दो लोग अगर रिप्लाई कर दे तो बहुत बेटर होगा. वॉइस थोड़ा थोड़ा लो है राजू सर. अच्छा, अभी अभी ठीक है. या इट्स बेटर. चलिए, थैंक यू थैंक यू. स्क्रीन ओके. दिख रहा है बाबू भैया? हाँ. चलिए ठीक है, थैंक ओके, यू थैंक मैं यू. लिख पा रहा हूँ. तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना. माई सेल्फ राजू गिरी एंड मैं स्टॉकेज और ट्रेडिंग पे एज ए स्टॉक एज ए टेक्निकल एनालिस्ट काम करता हूँ. एंड आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजीज पे. तो आज हमारा जो पूरा फोकस रहेगा स्ट्रेटेजी पे है. और आज का जो डिस्कशन का या इस जो वेबिनार का मेन पर्पस जो है ये हेलो हाँ, ये पर्पस जो ये समझने के लिए है कि हाउ स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करके हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. हम कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हम कैसे स्टॉप लॉस लेंगे, कैसे हम एंट्री लेंगे, क्या एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी होगा हम लोगों का, और क्या हम लोगों का एग्जिट स्ट्रेटेजी होगा. तो आज हम लोगों का जो पूरा फोकस रहेगा ऐसी चीजों पर रहेगा. इस पर हम लेकर डिस्कस करते हैं. तो जो हमारा स्टॉकेज का इनबिल्ट स्ट्रेटेजीज है उस पर एक बार चलते हैं. इसमें तीनों तरह का ट्रेडर्स के लिए है. जो इंटरडे ट्रेड करते हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स है, या जो पोजिशनल ट्रेडर्स है जो एक थोड़ा लंबा टाइम के लिए अपना पोजीशन बैठाते हैं, तो उनके लिए भी इनबिल्ट स्ट्रेटेजीज है. तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये समझना है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आर नॉट द रिकमेंडेशन. प्लीज डोंट कंसीडर एज ए रिकमेंडेशन, क्योंकि रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है.
it's better if you consider as a technical tool. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझना कि स्ट्रेटजीज जो है उसका जो मेन फंक्शन था, ये जो मेन मोटो बिहाइंड द स्ट्रेटजीज है कि ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक टूल है, एक टेक्निकल टूल, एक टेक्निकल फंडामेंटल टूल्स को मिला के एक टूल की तरह यूज करना है जो आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है. लेकिन इफ यू आर अ ट्रेडर और इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर और पोजीशन ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर, तो देयर इज अ 5 थंब रूल. जो फर्स्ट होता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच ट्रेड इज गुड फॉर यू फॉर द नेक्स्ट डे और फॉर नेक्स्ट वीक और फॉर द नेक्स्ट मंथ. मतलब कौन सा ऐसा ट्रेड आपको स्टॉक्स है जो आपको कल मूव कर सकते हैं, एक हफ्ते में 10 दिन में अच्छा काम कर सकते हैं और महीने में भी अच्छा कर सकते हैं. तो बेसिस जो है एक स्ट्रैटेजी का वो मेन ये है कि आइडेंटिफिकेशन आपको हम लोग रेडीमेड करवा देते हैं. तो जो 5 रूल्स ऑफ द ट्रेडर होता है कि पहला आइडेंटिफिकेशन होता है, सेकेंड इज द कंफर्मेशन, जिसके लिए ये वेबिनार करवाया जा रहा है कि आपको आइडेंटिफिकेशन होने के बाद आप उसको कैसे कंफर्म करते हैं, व्हाट आर द मेजर्स एंड व्हाट आर द मेजर्स जो आपको इस चीज को हेल्प करेंगे कि आप कैसे उस आइडेंटिफिकेशन जो स्टॉक्स आए हैं उनको आप कंफर्मेशन कैसे करेंगे. नेक्स्ट स्टेप है थर्ड इज द एग्जीक्यूशन, व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द रूल्स फॉर द एग्जीक्यूशन. आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे, कैसे ट्रेड जो आइडेंटिफाई हो चुका है, जो कंफर्म हो चुका है, अब उसमें एग्जीक्यूशन कैसे करना है. एंड द फोर्थ रूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ट्रेडर इज द कंटिन्यूएशन. क्या आपको उस ट्रेड को कंटिन्यू करना है आफ्टर द, आप जब एंट्री ले रहे हो या आपने ट्रेड में बन गया, इज देयर एनीथिंग जो टेक्निकल पैरामीटर्स जो चेंज हो रहे हैं, क्या ये एग्जिट का इशारा कर रहा है या ये कंटिन्यूएशन ही रहेगा. और द फाइनल एग्जिट, एग्जिट दो तरह के होते हैं, प्रॉफिट एग्जिट एंड द एसएल जो अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट करते हैं. तो देयर इज अ 5 रूल जो हर एक ट्रेडर्स को, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर्स हो, इस बार स्विंग ट्रेडर और पोजीशन ट्रेडर, ये रूल आपको क्लियर होना चाहिए. तो आज हम लोग का जो पूरा फोकस रहेगा इसी चीज को स्ट्रैटेजी के बेसिस पे समझने के लिए. मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, स्ट्रैटेजी जो है वो आपका 5 रूल में से पहला रूल रेडी कर देता है, आपको कंफर्म कर देता है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन. आप इस बार इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजीशन ट्रेडर, आपके पास देयर इज अ नंबर ऑफ स्टॉक्स जो कल अच्छा कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक में अच्छा कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में अच्छा कर सकते हैं. उसका आइडेंटिफिकेशन जो है स्ट्रैटेजीज करके दे देती है. तो आपका जो 5 जो आपका 5 इंपॉर्टेंट काम है सॉरी एज अ ट्रेडर, उसका पहला जो काम है वो स्टॉकेज के इनबिल्ट स्ट्रैटेजीज उस काम को कर देती है. उसके बाद जो बाकी 4 है, कंफर्मेशन, एग्जीक्यूशन, कंटिन्यूएशन और एग्जिट, ये आज हम लोग इस पे सीखेंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग. तो हम लोग चलते हैं पहला वन डे स्ट्रैटेजीज पे जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है. इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जैसे कि हम लोग सारे लोग जानते हैं, ऑल नो कि मार्केट में 2 तरह के ट्रेड हो सकते हैं, आइदर आप बुलिश हो सकते हैं, आइदर बेरिश हो सकते हैं. आपको पैसा तभी बनेगा या तो आप लोअर लेवल्स पे बाई करके हाई लेवल्स पे बेचते हो, और या तो फिर आपका, या तो आप हाई लेवल्स पे सेल करते हो और लोअर लेवल्स पे बाई करते हो, तभी आपका पैसा बनता है. तो हम लोग बात करते हैं वन डे स्ट्रैटेजीज पे. वन डे ट्रेड बुलिश स्ट्रैटेजीज, उस पे आते हैं हम लोग को 3 तरह के स्ट्रैटेजीज है, कैनन, स्वॉट एंड डैगर. अब एक एक करके समझते हैं कैनन क्या है. इनको वाले पार्ट में चलते हैं, इसमें सब कुछ आपका दिया हुआ है, हम लोग जस्ट इसको समझेंगे और ज्यादा फोकस करेंगे उस 4 रूल पे, क्योंकि पहला आइडेंटिफिकेशन का ही जो सारा जो फॉर्मेट है इसमें दिया हुआ है. तो अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं. मैं जस्ट इसके मेन फीचर्स को, मेन जो टॉपिक्स है उसको क्लियर करूंगा, एंड हम लोग फिर 4 चीजों पर फोकस करेंगे. इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं. इसमें ऐसे स्टॉक है मोमेंटम, जो हम लोग सुन के पहले क्या लगता है, मोमेंटम मतलब जिसमें बहुत अच्छे तरीके से वॉल्यूम के साथ प्राइस हाइक हो रहा है. अगर आप किसी स्टॉक्स को मोमेंटम आप कैसे समझते हो, देखिए, एक होता है जो 1% करके रोज बढ़ रहा है, या ऐसे स्टॉक जो रोज 5%, 4% करके बढ़ रहे हो, 3% करके बढ़ रहे हो. ठीक है, तो जिनमें बहुत तेजी से प्राइस चेंज होता है, ठीक है, बहुत क्विक अपने ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाता है, उनको बोलते हैं हाई मोमेंटम स्टॉक्स, जिनमें बहुत हर लेवल पर बाइंग सेलिंग हो रहा है, तो उसका हाई मोमेंटम बोलते हैं. कैनन ऐसे ही स्टॉक्स को फिल्टर करके लाके देता है. ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन. पहले हम समझ लें, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज आर ओनली फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स जो 9:15 से लेके 3:30 तक का ही काम करते हैं. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट कि ये जो स्ट्रैटेजी इज ओनली फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स, दोस हैव द टाइम ऑफ ओनली 9:15 टू 3:30. आपको 9:15 में ट्रेड लेना, 3:30 तक आपका एग्जिट कर जाना है. तो ये जो सबसे पहला, आप इसको वीक पॉइंट भी
ले सकते हैं, आप इसको एक लिमिटेशन की तरह भी देख सकते हैं। तो इंटरनेट ट्रेडर्स के पास एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि एक बहुत बड़ा एक बर्डन है कि आपका टाइम जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। इंटरनेट ट्रेडर्स के रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:1.5 मीन्स कि अगर आप ₹1 का स्टॉप लॉस देखते हो तो एटलीस्ट टारगेट आपका ₹1.5 होना चाहिए। ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है, ये एक प्राइमरी हम लोग सेट करके रखे कि 1:1.5 होना चाहिए। अगर स्टॉक में मोमेंटम है आप कंटिन्यू कर सकते हो, 2% 3% तक का भी देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पर तो अब तो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो आप 0.8 0.9 पे भी एग्जिट कर सकते हो। द मेन मोटो इसके आपको प्रॉफिटेबल होना है, ठीक है। तो ऐसा कोई गोल्डन रूल है, बट एक मिनिमम लोगों ने सेट किया 1:1.5, क्योंकि उस पर आप अच्छा खासा सारा ब्रोकरेज वोकरेज स्टेडी दे के भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता है। लेंथ ऑफ द ट्रेड हम लोग पहले ही डिस्कस कर सके। लेंथ ऑफ द ट्रेड इज 950 to 330। स्कैन्स पे चल जाते हैं, स्कैन्स पे देख लेते हैं। हाई ट्रेड हाई क्वांटिटी, जो हम लोग का पहला जो मेन मोटो है कि हाई ट्रेड हाई क्वांटिटी होना चाहिए, मतलब लिक्विड स्टॉक होना चाहिए। इन लिक्विड स्टॉक नहीं होंगे। क्लोजेस क्लोजेस ऑफ प्रीवियस हाई, क्लोजेस ऑफ प्रीवियस हाई मींस द मोमेंटम स्ट्रांग। जो एक स्टॉक है उसका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है बिकॉज अपने प्रीवियस हाई के ऊपर वो सस्टेन कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर वो मोमेंटम स्टॉक्स में आ रहा है तो। क्लोजेस ऑफ लास्ट वीक हाई, लास्ट जो उसका प्रीवियस वीक हाई है उसके ऊपर वो चल रहा है। आरएसआई क्रॉस अबव 70, मतलब वो ऑलरेडी हाई मोमेंटम में ओवरसोल्ड जोन में एंट्री कर रहा है, तो हो सकता है कि आखिर में बहुत तेजी से और भी ज्यादा ऊपर चला जाए। और या तो आरएसआई ओवरबॉट जोन में है तब, अगर ऐसा सारा कंडीशन होता है दैट्स तो ये एमएम स्ट्रेटजी का फुलफिल करता है। इसमें दो तरह के आप देख सकते हैं स्टॉक्स हैं। एक है परफेक्ट मैच और दूसरे होते हैं ऑलमोस्ट देयर। परफेक्ट मैच ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारे पास सारे पैरामीटर्स को फिट करते हैं, एंड ऑलमोस्ट देयर जो ऐसे स्टॉक जिन्होंने 70-80% कंडीशन को मैच किया है, ठीक है। तो अब एक किसी एक स्टॉक पे स्ट्रेटजी पे एक पे हम लोग बात करेंगे, तो हम बात करते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया पे बात कर लेते हैं, जो कि कल आया था। अच्छा, इसमें जो डेटा आता है वो 8 8:30 9 बजे के आसपास अपडेट हो जाता है, तो नेक्स्ट डे का ट्रेड जो है वो आपको 8:30 के आसपास मिलेगा। तो कैस्ट्रॉल आया था जैसे इसमें। अभी हम लोग कैनन पे बात कर रहे हैं जो कि हाईली मोमेंटम स्टॉक होते हैं। जी जी कल आया था सर। जी प्रियांक जी कल आया था। ये हम लोग देख लेते हैं, ये आपका हाई मोमेंटम स्टॉक है। आरएसआई ऑलरेडी देखिए 70 के अबव है, बहुत अच्छा था, हाई मोमेंटम है। अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर सस्टेन भी किया इसने, सस्टेन करके क्लोज भी किया इस वाले बार में आया था। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है, आप दो तरह से एंट्री कर सकते हैं। जो हम लोग का कंफर्मेशन सिनेरियो है, आपने आइडेंटिफाई कर दिया स्टॉकेज के ऐप ने कि यार कैस्ट्रॉल आया था। अब आपको आइडेंटिफाई हो गया, आइडेंटिफिकेशन पहला पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट इज द कंफर्मेशन। आप कैसे कंफर्म होगा, हाउ यू कंफर्म कि अब ये कल मुझे लेना है या नहीं लेना है। इसका दो तीन बहुत सिंपल सा बेसिक सा रूल है। देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ स्टॉक, हो सकते हैं एक स्ट्रेटजी पे, एक स्ट्रेटजी के एक पार्ट पे 10-15 स्टॉक आ जाए। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए ट्रेडर कि वो 10 के 10 स्टॉक पे ट्रेड करे, ठीक है। तो अब उसमें से उसको कंफर्म कैसे करना है कि किस पे वो ट्रेड कर सकता है, दैट इज द सेकंड रूल, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का रूल बोलता है द फर्स्ट, जिसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग ऑन अ चार्ट भी आपको दिख रहा है। मींस आप अगर प्रीवियस डे के कैंडल को देखें, इज अ बिग बुलिश कैंडल, मोमेंटम था और अपने हाई के आसपास बंद किया, तो कंडीशन नंबर 1 इज फुलफिल कि बुलिश कैंडल है और अपने हाई के आसपास बंद कर रहा है। व्हाट इज द सेकंड रूल? द सेकंड रूल इज द आरआर। आरआर मींस द रिस्क टू रिवॉर्ड कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखिए, अगर मेरा यहाँ पर ये बंद कर रहा है 244 में, तो इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई होगा दैट इज माय स्टॉप लॉस, ठीक है। इसको ले सकते हैं हम। तो ये 230 के आसपास है, जो अपने प्रीवियस हाई से अच्छा खासा बंद हुआ, मतलब मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। सेकंड कंफर्मेशन। थर्ड, आरएसआई में किसी तरह का डाइवर्जेंस नहीं है, आरएसआई में किसी तरह का नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है, थर्ड कंफर्मेशन। फोर्थ,
देयर इज अ वॉल्यूम 2। तो ये 4-5 चीजें हैं जो इस चीज को कंफर्म कर देंगी आफ्टर आइडेंटिफिकेशन कि नहीं, स्टॉक तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब एंट्री कैसे लेना था? थर्ड वाज द एग्जीक्यूशन। इफ द स्टॉक, अगर कैस्टल का ज्यादा, इफ द स्टॉक अगर आज वो अपने पहले 15 मिनट के कैंडल में देखिए प्रीवियस डे के क्लोजिंग को ऊपर सस्टेन कर जाए, हाई के ऊपर कर जाए तो सोने पे सुहागा है। बट अगर हाई पे सस्टेन नहीं भी करता और प्रीवियस प्रीवियस हाई के, सॉरी प्रीवियस जो उसका क्लोजिंग है, इफ द स्टॉक क्लोजेस ऑफ द प्रीवियस डे हाई दैट मींस द मोमेंटम स्ट्रांग। वो आपको कंफर्मेशन हो गया, आपने चार्ट पे कंफर्म कर लिया बाय द जो मैं 3-4 रूल्स बताए। एंड द थर्ड रूल इज द एग्जीक्यूशन। If the stock sustained above the previous day closing और previous day high, that's mean आपको ये confirmation भी आ गया। अब आपको execute करना है, आपको प्राइस में एंट्री करना है, ठीक है। आप एंट्री लेते हो और एंट्री के बाद आता है कंटिन्यूशन। अगर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नया हाई बनाता है, उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। और फिर आपको प्रॉफिट को एंजॉय करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर करते करते करते। तो दैट इज 5 रूल कि जिस तरह आप उसको कर सकते हो। सेकेंड स्ट्रैटेजी पे चलते हैं हम लोग। हर एक स्ट्रैटेजी पे एक चार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए चार्ट पे डिस्कस करने से बेटर, मेरे हिसाब से इस बेटर कि हम लोग कॉन्सेप्ट को समझे एंड रूल को समझते हैं। सेकेंड, द शॉर्ट, द कंटिन्यूशन। क्योंकि मार्केट बुल है तो अभी तो ज्यादा करके हम लोग बुल स्ट्रैटेजीज पे ही बात करेंगे, बेरिस पे बात मार्केट में बुल है तो देखते हैं बेरिस में कोई अच्छा स्टॉक आए तो फिर ये करते हैं। शॉर्ट कंटिन्यूशन, कंटिन्यूशन स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है, कंटिन्यूशन का मीन्स होता है कि एक स्टॉक जिसने एक अच्छा खासा अपमूव दिया, फिर देयर इज अ स्टॉप, देयर इज अ कंसोलिडेशन फेज, देयर इज अ साइडवाइज फेज, उसने 2-3 घंटे 2-3 दिन उसमें निकाले। क्योंकि इंट्राडे में है तो बहुत ज्यादा साइडवाइज नहीं होना चाहिए, एक अच्छे खासे अपमूव का, देयर इज अ कंसोलिडेशन फेज एंड अगेन द स्टॉक गिव द ब्रेकआउट और उसके बाद वो अपने प्राइमरी जो मूव था उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कंटिन्यूशन शॉर्ट। इसका इंट्रो पार्ट में भी आप देख सकते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड इज सेम 1:1.5। अगर आप ₹1 का ये लेते हो तो आप ₹1.5 तक का प्रॉफिट देख सकते हो, ठीक है। प्रियांक के मैंने समझाया 15 मिनट में अगर वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग और हाई इन दोनों में से किसी के ऊपर फर्स्ट 15 मिनट में अगर सस्टेन कर जाता है या क्लोज कर जाता है, दैट इज अ परफेक्ट बाई फॉर अ इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। अब हम स्कैन्स पे चलते हैं। हाई ट्रेड क्वांटिटी इंट्राडे ट्रेडर्स, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको सारे के सारे लिक्विड स्टॉक पे ट्रेड करना है, ठीक है। आपको सारे के सारे लिक्विड स्टॉक पे ट्रेड करना है, तो ये आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। इफ यूर इंट्राडे ट्रेडर, आपको इनलिक्विड स्टॉक पे ट्रेड नहीं करना। सेकंड, जो शॉर्ट का हाई इंक्रीज इन 3 मंथ, जैसा कि मैंने कहा कि एक अच्छा खासा आपको आया था, फिर एक साइडवाइज फेज में चला गया था और फिर वो अपने प्राइमरी मूव को फॉलो करता है। सीसीआई इज ट्रेंडिंग अप, एमएफआई इज ट्रेंडिंग अप, बोथ द इज द लीडिंग इंडिकेटर। बहुत लोग हैं जो आरएसआई की जगह, बहुत लोग हैं जो आरएसआई की जगह एमएफआई और सीसीआई भी करते हैं। ऑलमोस्ट तीनों का जो एक बेसिक जो रूल है, बेसिक फंडा सेम है। दे आर द लीडिंग इंडिकेटर, वो बहुत अर्ली आपको इंडिकेट कर देते हैं कि स्टॉक में मोमेंटम कैसा है। परफेक्ट मैच में कोई है नहीं, एक ऑलमोस्ट देयर में एफपीएस है, उस पर बात कर लेते हैं। जी बॉबी जी, बिल्कुल। अगर पोजिशनल ट्रेड्स तक टाइम लिमिट जो रहा तो बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे उस पर। एंट्री एग्जिट फॉर द पोजिशनल ट्रेड हम लोग पूरा उस पर डिस्कस करेंगे। एफपीएस पे चलते हैं। 15 मिनट्स का ही चार्ट लगा हुआ है। तो जो मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूशन का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर या क्लोजिंग के ऊपर वो सस्टेन करे एटलीस्ट 15 मिनट के चार्ट पे। तो ये शायद उसका प्रीवियस डे का देख लेते हैं क्लोजिंग कहाँ हुआ। ये रहा इसका प्रीवियस डे का क्लोजिंग, बहुत अच्छा बुलिश कैंडल है, ये भी बहुत अच्छा बुलिश कैंडल था। तो कंफर्मेशन का वही रूल है जो आपने मैंने उस पर बताया था। वॉल्यूम है, बुलिश कैंडल है, अपने प्रीवियस हाई के ऊपर निकला है, तो ये ऑलमोस्ट ये आ गया। तो 15 मिनट्स का चार्ट पर हम लोग का लगा लिया है और हम लोग देखेंगे कि ये इसका ओपनिंग कहाँ हुआ। ये इसका 3 जुलाई के आसपास है, ये इसका 4 जुलाई का पहला कैंडल है।
जो कि उसके ऊपर ही बंद किया। देखिए 497 जो इसका प्रीवियस डे का क्लोजिंग था ऑलमोस्ट, तो उसके ऊपर ही उसने पहले ही 15 मिनट के कैंडल में, इस वाले कैंडल में आप देखिए उसने क्लोज कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये उसके ऊपर क्लोज कर दिया, मीन्स आपका कंफर्मेशन दे दिया है कि मैं अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही सस्टेन कर रहा हूँ। तो अगर प्रीवियस डे के हाई, सॉरी, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर ही सस्टेन करो, प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन करना इज अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स कि वो उस पर ट्रेड ले सकते हैं। इसका भी सेम रूल है, आप इसका स्टॉप लॉस ले सकते हो, प्रीवियस डे का स्विंग लो ले सकते हो, प्रीवियस डे का जो उसका कैंडल का लो ले सकते हो, या जिस करंट डे पे आप एंट्री करो उसका लो भी आप एज ए स्टॉप लॉस पकड़ सकते हो। अगर आपने इस कैंडल में एंट्री किया, आपको एक अच्छा खासा इंट्राडे में मूव मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे स्ट्रेटेजी की तरफ। डैगर एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी है फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स। इसमें क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पहले समझते हैं। इन डैगर स्ट्रेटेजी आपको कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करके आता है। दो स्टॉक्स जिनमें एक अच्छा खासा डाउन साइड हुआ है, एक अच्छा खासा करेक्शन आया है, एक अच्छे खासे अप के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन है, और फिर आप देखोगे चार्ट में बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं जो अपने अच्छे खासे करेक्शन के बाद फिर से एक रिवर्सल लेके वापस से अपने प्राइमरी ट्रेंड की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफिकेशन डैगर स्ट्रेटेजी में किया जाता है। ठीक है, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड भी सेम है, 1:1.5। कैश पे चलते हैं हम लोग। जो हमारा बेसिक रूल है कि हाई डिलीवरी क्वांटिटी होना चाहिए, डिलीवरी अच्छा खासा होना चाहिए स्टॉक्स पे, हाई डिक्रीज ऑन 1 मंथ, एक महीने में अच्छा खासा करेक्शन हो तभी तो आपको रिवर्सल मिलेगा। विलियम परसेंटेज आर इज बुलिश, विलियम परसेंटेज आर इज इंडिकेटिंग द बुलिश इंडिकेशन कि आप यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। और मैकडी दैट इज अ लेगिंग इंडिकेटर व्हिच गिव यू द सिग्नल दैट सिंगल लाइन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिनेरियो बनता है जहां पर एक रिवर्सल का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि यार ठीक है, अपने 1 मंथ से गिर रहा था और सडनली जो इंडिकेटर्स है रिवर्सल का साइन दे रहे हैं। देखते हैं इसमें कोई स्टॉक्स है या नहीं है। इसमें परफेक्ट मैच में कोई नहीं है, हिंदुस्तान कॉपर एक है। इंटरडे के देखिए सबका सेम रूल है। मैं फिर से इंटरडे क्योंकि स्ट्रेटेजी खत्म हो रहा है, उसका सिंपल से एक सेम रूल है। अगर कोई भी स्टॉक जो आपने आइडेंटिफाई किया, चार्ट पे कंफर्म हुआ कि नहीं वॉल्यूम है, अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल बन रहा है, कंफर्मेशन हो गया, एग्जीक्यूशन का एक वेरी सिंपल रूल कि अगर वो स्टॉक पहले 15 मिनट या दूसरे 15 मिनट यानी 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन कर जाए या प्रीवियस डे के हाई के ऊपर निकल जाए, ट्रेड्स करें, तो दैट गिव यू द 100% कंफर्मेशन कि आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं फॉर द डे, जो आपको अच्छा खासा एक मोमेंटम देगा। अगर आप कैनन में यूज कर रहे हो तो मोमेंटम इज वेरी साफ, बहुत जल्दी होगा, हो सकता है 12-1 बजे तक आप अपने टारगेट को अचीव कर लो। और अगर आप दूसरी स्ट्रेटजीज पे कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। अब वन डे बेरी स्ट्रेटेजीज में चलते हैं, क्योंकि मार्केट बुल में तो बेरी स्ट्रेटेजीज के चार्ट पर डिस्कशन नहीं करेंगे, स्ट्रेटेजीज को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट सबका सेम है, जो 5 रूल है एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या। आर्मर है, सिल एंड बूमरेंज है। आर्मर में डिस्कस करते हैं, इसमें कोई भी स्टॉक्स नहीं आए। जैसे कि मैंने कहा मार्केट एक बुल मार्केट में तो बेरिश स्कैन्स में स्टॉक्स नहीं आते, तो इट्स बेटर इफ यू गो विद द ट्रेंड। एक कहावत ही हम लोग स्टॉक मार्केट में कि यार ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है, दैट इज परफेक्ट। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो उस पे चलते हैं। सेम है इंट्राडे स्ट्रेटेजीज का, सबका एग्जीक्यूशन का रूल सेम है। 9:15 से लेकर आपको 3:30 तक का ही टाइम है, कुछ कुछ ब्रोकर 3:20 तक का टाइम देते हैं फॉर एग्जिट, आप एग्जिट कर सकते हो। अब इसका सेम है, आप इसका देख सकते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड भी 1:1.5 है। आर्मर या मोमेंटम स्टॉक्स ऐसे आते हैं जो जो कंटिन्यू गिर रहे हैं। इसमें ऐसे स्टॉक्स आएंगे जिनमें हर दूसरे दिन न्यू लोस का सॉरी फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इनका मोमेंटम तो स्ट्रांग है, बट इन बायस साइड, इन नेगेटिव साइड। ये गिरने में बहुत स्ट्रांग है, हर बार गिरने नीचे की तरफ जा रहे हैं और न्यू लोस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, स्कैन्स पे बात कर
जो हम लोग का पहला ही एकदम गोल्डन रूल है स्टॉकेज का, एक कि कोई भी रिटेल क्लाइंट, जो विवेक सर का विजन है कि रिटेल क्लाइंट जो होता है ना वो सेफ हो। तो आप सेफ कैसे रहोगे? इफ यू आर इंटरनेटेड, इफ यू आर ट्रेडिंग है ना लिक्विड स्टॉक, तो हमारा जो स्कैन है ना उसका जो पहला ही आप देखोगे सब में है, जैसे हाई ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी मीन्स द स्टॉक इज लिक्विड, कि आपको हर जगह आपको एग्जिट करने को मिल जाए, आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि इन स्टॉक में अगर आप फंस गए देयर इज अ कंटिन्यू लोअर सर्किट, तो फिर आपका पैसा जीरो हो सकता है। तो इसीलिए तो हम लोग का पहला ही रूल है कि हाई ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी होता है। सेकंड, क्लोजेस बिलो प्रीवियस लो, मतलब कि जो मैंने कहा कि अपना न्यू लोस का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लोजेस बिलो लास्ट वीक लो, मतलब एक वीक से वो कमजोर है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है उसका नेगेटिव साइड में और कंटिन्यू गिर रहा है। आरएसआई क्रॉस 30, सॉरी आरएसआई क्रॉस बिलो 30, आरएसआई जो है ओवरसोल्ड जोन पे जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर वो कंटिन्यू डाउनफॉल में है, मतलब द मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन ए नेगेटिव साइड, वो बहुत तेजी से गिर रहा है। एंड या तो आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है। अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है और उसके बाद भी न्यू लोस का फॉर्मेशन कर रहा है, इस चीज को समझने का है कि अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी इन अ ओवरसोल्ड जोन एंड उसके बाद भी इफ द स्टॉक इज मेकिंग न्यू लोस, तब दैट्स मीन कि अभी भी उसमें कोई रिवर्सल नहीं होगा, वो कंटिन्यू गिरेगा। ठीक है। सेकंड, सिल्क कंटिन्यूशन सेम, एक अच्छे खासे प्राइस करेक्शन के बाद एक साइडवाइज फेज में गया, कंस्ट्रक्शन फेज में गया, रिटेलर्स आए और उसके बाद वो फिर से अपना डाउनसाइड मूव उसका ओपन होगा और फिर से गिरने लगा। इंट्रो वाले पार्ट पे जाएंगे, यही चीज है, आप पढ़ भी सकते हैं। स्ट्रैटेजी रिस्क टू रिवॉर्ड इज सेम 1:1.5। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। हाई ट्रेड क्वांटिटी हाई डिक्रीज इन 3 मंथ, 3 महीने से कंटिन्यू गिर रहा है। सीसीआई इज ट्रेंडिंग डाउन एंड एमएफआई इज ट्रेंडिंग डाउन। सर उसमें जितेंद्र पटेल जो उसमें आया नहीं है। लोकेश जी, आपका जो क्वेश्चन है इसमें मैं एक बार खत्म कर देते इंटरनेट, फिर इसको ले लेते हैं। मैं बताता हूँ, मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, इसमें मैं बात करते हैं। एंड द लास्ट वन इज द बूम रेंज। बूम रेंज दिस इज द रिवर्सल, इसमें इसमें मिल सकते हैं, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट देर में आए भी हैं बहुत सारे स्टॉक्स। इसका जो कॉन्सेप्ट है कि एक स्टॉक अपसाइड में था, अच्छा खासा अप मूव आया, अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो इस स्ट्रैटेजीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग है। तो इसको आप ऐसे भी प्ले कर सकते हो कि इफ यू हैव द स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो और अच्छा खासा अप मूव आया, तो आप इसमें भी आप जाके चेक कर सकते हो कि कहीं रिवर्सल तो नहीं आ रहा, इज देयर एनी नेगेटिव डाइवर्जेंस, इज देयर एनी नेगेटिव कोई इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा हो कि अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो आप स्ट्रैटेजी का एडवांटेज लेके आप अर्ली एग्जिट कर सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी को ऐसे भी देखना चाहिए, ऐसे भी समझा जा सकता है, दिस इज नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे शॉर्ट कि आपको सेल करके खेलना है, इट इज ऑल्सो यूज कि आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर एग्जिट ऑफ योर पोर्टफोलियो। ठीक है, आप एग्जिट भी ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ बूम रेंज की, अगर कोई स्टॉक इसमें आ रहा है एंड आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो अच्छे खासे प्रॉफिट में, देन आप इससे एग्जिट भी कर सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी का यूज आप ऐसे भी कर सकते हो। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। आईफोन यूजर सर वीकली मंथली बताएंगे सर, पोजिशन वाले पे चलेंगे तो उस पर बात करेंगे। एंड चंदन सकर जी बिल्कुल बीटीएसटी पे भी डिटेल में स्ट्रेटेजी करेंगे, डिटेल पे हम लोग बात करेंगे, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। हाई डिलीवरी क्वांटिटी, हाई इंक्रीज इन 1 मंथ, एक महीने से स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट जो पहला इंडिकेशन है विलियम परसेंटेज आर इज वेरीज एंड मैकडी जो सिंगल लाइन है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। द टेल ऑफ द मैकडी का जो सिंगल लाइन है उसको ऐसे डाउनवर्ड होना चाहिए, मीन्स की प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है, एग्जिट आ सकता है, और ये अपने प्राइमरी ट्रेंड को जो अप ट्रेंड है उसको अभी रिवर्स कर सकते हैं। तो वन डे पे हम लोगों ने खत्म कर दिया। इज देयर एनी क्वेश्चन? वन डे पे 2 मिनट हम लेते हैं, इंटरडे पे किसी का कोई क्वेश्चन है? सर हाउ टू फाइंड रिवर्सल अभी तो बताया सर, आपको कैसा रिवर्सल चाहिए, बुलिश रिवर्सल या बेरिश रिवर्सल? इफ यू आर फाइंडिंग फॉर द, यानी आपको बुलिश रिवर्सल चाहिए देन आप डैगर यूज करो, और आपको बेरिश रिवर्सल चाहिए देन आप बूम रेंज यूज कर सकते हैं। बुलिश टू बेयर सर, अभी जो मैंने बताया बूम रेंज, ये वाला रिवर्सल वाला सर, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा इन द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द सेशन आपको मिल जाएगा। इंटरनेट में किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई समझने में इशू नहीं है?
मिल जाएगा सपन सर, मिल जाएगा, टेंशन ना लो। तो चलते हैं हम लोग बुलिश स्ट्रेटेजी के साथ। नहीं अभी तो सर आया नहीं स्कैन्स पर ना, स्कैन्स पे आएंगे, उसको फाइंड आउट कर तो मिल जाएगा आपको। सो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्विंग बुलिश स्ट्रेटेजी। दो सेकंड टाइप के ट्रेडर होते हैं, दो ट्रेडर जिनके पास टाइम का जो बर्डन है वो नहीं होता है, यानी उनके पास एक अच्छा खासा टाइम होता है, जो अच्छे खासे टाइम के बाद टाइम के लिए ट्रेड लेते हैं, उनको स्विंग ट्रेडर कहा जाता है। जो इंटरडे ट्रेडर से अलग होता है, एटलीस्ट उनके पास 2 दिन से 15-20 दिन, 1 महीने तक का टाइम होता है। दे आर कंसिडर एज अ स्विंग ट्रेडर मार्केट में। सेम जो स्विंग ट्रेडर है वो भी 2 तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड, सॉरी बुलिश ट्रेड एंड द बेरिश ट्रेड। एक हेलो। सो जो स्विंग ट्रेडर है वो भी 2 तरह से ट्रेड ले सकते हैं, बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो पहले हम लोग बुलिश में पढ़ते हैं, स्विंग बुलिश स्ट्रैटेजी। इनका भी सेम 5 रूल है, आइडेंटिफिकेशन, कंफर्मेशन, एग्जीक्यूशन, कंटिन्यूएशन एंड एग्जिट। तो हम लोग बात करते हैं पहले वाले पे, द ईगल, जो मोमेंटम, हाईली मोमेंटम स्टॉक स्विंग ट्रेडर्स के लिए होता है, जो कंटिन्यू हायर हाइज हाई लोस का फॉर्मेशन करता है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये जो सबसे पहला चीज होता है, जो बुलिश स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, जो हायर हाइज हाई लोस का फॉर्मेशन करते हैं, वो मोमेंटम उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वॉल्यूम भी है और हायर हाइज बना रहे हैं, न्यू हाइज बना रहे हैं, और न्यू लोस का, न्यू हायर लोस, न्यू लोस इन द सेंस न्यू हायर लोस मींस कल का लो आज के लो से ऊपर नीचे होगा, आज का लो सॉरी कल जो नेक्स्ट दिन का लो है वो आज के लो से ऊपर होगा, इसको हायर हायर लोस का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:3। आप ₹1 के लिए ₹3 तक का प्रॉफिट दे सकते हो। इन स्विंग स्ट्रेटेजी आप ₹1 का अगर एज ए स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आप ₹3 तक का मिनिमम प्रॉफिट देख सकते हो। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, देयर इज नो सच रूल कि आपको 1:3 लेना है, 1:5 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है। इवन इन सम केसेस इट कैन आल्सो बी 1:2। इट्स टोटली डिपेंड कि आपके ट्रेड लेने के बाद इज द कंटिन्यूएशन आ रहा है या कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है, तो ये भी आपको समझना होगा। लेंथ ऑफ द ट्रेड 2 दिन से लेकर 30 दिन तक। इंटरडे ट्रेडर्स का जो सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है, दैट्स अ टाइम बर्डन, बट इफ यूर अ स्विंग ट्रेडर, जो आपका सबसे प्लस पॉइंट है, दैट इज अ 2 डे टू 30 डे। ठीक है, 2 डे टू 30 डे। स्कैन्स पे बात करते हैं, फिर स्टॉक पे करेंगे। क्लोजेस विद इन 52 वीक हाई जोन। ठीक है, जो मोमेंटम ऑफ द स्टॉक जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा होगा, अपने 52 वीक हाई के आसपास ही होगा। हाई जोन का मतलब 10 से 15% के रेंज में ही होगा। Stock outperform benchmark index in both in 1 week and 3 month, means in a shorter time frame or in a mid-term time frame, in a both scenario पे the stock is outperform the benchmark index, means आप अगर SBI है तो वो अपने निफ्टी 50 को बीट कर रहा है इन बोथ द शॉर्ट टर्म और इन अ मिड टर्म। स्टॉक आउटपरफॉर्म सेक्टोरियल इंडेक्स, आपको जैसे पता है कि जो SBI जो है वो निफ्टी 50 में भी है एंड इज ऑल्सो इन अ बैंक निफ्टी। तो निफ्टी को बीट करते के साथ साथ अगर वो अपने बैंक निफ्टी को भी बीट करता है, दैट मींस देयर इज द मोमेंटम इज जो बहुत ही हाई है। ठीक है, स्ट्रांगली आउट परफॉर्म इन आरएस, आरएस का जो पैरामीटर है उसमें भी आता है, स्ट्रांगली आउट परफॉर्म द बेंचमार्क इंडेक्स आरएस के ऊपर, और स्ट्रांगली आउट परफॉर्म द सेक्टोरियल इंडेक्स बोथ एसआरएस एंड आरएस अबव 0। थोड़ा सा फंडामेंटल भी है क्योंकि 30 दिन का ट्रेड है, थोड़ा सा लंबा ट्रेड है, तो इसमें फंडामेंटल पैरामीटर्स भी है। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE जिसको बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ, एनुअल रिपोर्ट में कंसिस्टेंट उसका सेल ग्रोथ आ रहा, फंडामेंटल भी सही होना चाहिए। कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन मींस द कंपनी अर्निंग द मनी फ्रॉम द ऑपरेशन, अपने एसेट बेच के या कुछ अदर्स इनकम नहीं है, तो ऐसे स्टॉक्स जिनका फंडामेंटल भी बेसिक अच्छा होता है। परफेक्ट मैच में देयर इज अ ग्रीनवेल, OFS है, पराज है, तो ऐसा किसी एक पर हम डिस्कस करते हैं इसके। तो इस पे आप इंटरडे चार्ट पे देख सकते हो। इफ यू स्विंग ट्रेडर यू कैन सिंपली आप इंटरडे चार्ट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है,
इंटरडे को ही करना चाहिए। अब आते हैं इसके एग्जीक्यूशन वाले रूल पे। इफ यू आर स्विंग ट्रेडर और आप मोमेंटम के स्ट्रैटेजी पे जो ट्रेड ले रहे हो, तो इसका एग्जीक्यूशन का जो रूल होता है इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरडे जो ट्रेडर्स है। क्या होगा इसका रूल? फर्स्ट रूल कि अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाए एटलीस्ट, या एक दिन क्लोज कर जाए। अगर आपको लगता है द मोमेंटम इज वेरी हाई, मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो एटलीस्ट करंट डे के 2 घंटे यानी 9:15 टू 11:15 2 घंटे वो अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाए, और अगर क्लोज कर जाए इट इज वेरी बेटर। इफ आर स्विंग ट्रेडर, फिर से मैं बता रहा हूँ, एंट्री का पहला जो कंडीशन होगा कि वो अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाए एटलीस्ट 2 घंटा करंट डे, और अगर क्लोज कर जाता है तो कंफर्मेशन इज 100%। फर्स्ट। सेकेंड जो रूल है इसका स्टॉप लॉस का, इफ आर स्विंग ट्रेडर, आप या तो प्रीवियस डे का लो एज ए स्टॉप लॉस ले सकते हो अगर आप बहुत रिस्क एडवर्स ट्रेडर हो। इफ यू आर रिस्क एडवर्स ट्रेडर, then you have to take previous day low as a stop loss, and if you are कि ठीक है मैं चार्ट के बेसिस पे लेना चाहता हूँ स्टॉप लॉस, then the last swing low is your stop loss। इस वाले केस में the last swing low जो है आप इसको ले सकते हैं 2824, ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर मोमेंटम करके फिर लो बना, उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आप ले सकते हैं। टारगेट आप इसको इंटू कर लो 3 से, तो जो आएगा वो आपका टारगेट हो गया। कंटिन्यूशन जब तक ये हाई बन रहा है, आपको एग्जिट कब करना, कंटिन्यूशन कब आपको कंटिन्यू नहीं करना, इफ द स्विंग ट्रेड में आप जिसमें ट्रेड लिए हो और किसी मोमेंट में अगर ऐसा हो कि वो अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर 1 या 2 दिन नहीं बढ़ रहा है, अपना मोमेंटम को लूज कर रहा है, ठीक है, तो या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लेके आ जाओ और एग्जिट कर जाना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले पैटर्न की तरफ, दूसरे वाले स्ट्रैटेजी की तरफ। ईगल दो, जिसको कंटिन्यूशन भी कहा जाता है, कंटिन्यूशन का भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम प्रिंसिपल है कि एक स्टॉक जो कंटिन्यू एक अच्छे खासे अपरूप में था, एक सडनली स्पाइक आया उसमें, फिर देयर इज अ कंसोलिडेशन फेज और ये साइड वाइज फेज जो 5 दिन 10 दिन से चल रहा था, एंड अगेन उसमें फिर से बाइंग आ रही है और स्टॉक अपने उस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेकआउट करके अपने प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसका मीन्स होता है ये कि एक स्टॉक अच्छे खासे स्पाइक के बाद आफ्टर एक वेरी गुड स्पाइक द स्टॉक इज इन कंस्ट्रक्शन फेज, एंड उसके बाद वो रेडी हो रहा ब्रेकआउट देके अपने नेक्स्ट मूव के लिए। तो इसमें ऐसा है, इसमें फ्लैग भी आप देख सकते हो, फ्लैग पैटर्न भी बहुत सारे मिलते हैं। स्कैन्स पे चल जाए, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड सेम है, इसके रिस्क टू रिवॉर्ड को देख लेते हैं क्या है गवर्नमेंट में। आई थिंक 1:2 है, हाँ 1:2 है। आप ₹1 के लिए ₹2 ले सकते हो, क्योंकि इसका मोमेंटम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना ईगल का है, तो इसलिए इस वाले केस में आपका 1:2 है। जिसका मोमेंटम हाई है उसमें 1:3 है, जो स्विंग ट्रेड इसमें 1:2 है। सेम इसका जो ड्यूरेशन है 2 दिन से लेकर 30 दिन तक का है। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे चार्ट पे। क्लोजेस्ट ऑफ द प्रीवियस हाई इंक्रीज इन 6 मंथ, 6 महीने से बहुत अच्छा खासा ऊपर गया था। आरएसआई स्टैंडिंग में, आरएसआई इज अ वेरी गुड लीडिंग इंडिकेटर जो स्विंग ट्रेडर्स को फॉलो करना चाहिए या कर सकते हैं। आरएसआई बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है फॉर द स्विंग ट्रेडर्स, एंड विलियम परसेंटेज आर इज बुलिश आल्सो बुलिश। अगर दोनों इंडिकेटर बुलिश साइन कर रहे हैं मींस कि स्टॉक्स में बहुत अच्छा खासा बाइंग है। स्टॉक्स पे चलते हैं, परफेक्ट मैच में हैवेल्स है, आईआरएफसी को देख लेते हैं। आईआरएफसी में 2-3 दिन से फॉलो भी कर रहा हूँ, चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है इसका, मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा इसको मूव आ सकता है। देखते हैं क्या चार्ट पे कंफर्मेशन है। ये देखिए एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में था स्टॉक, से एक छोटा सा करेक्शन आया, एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं था, इलेक्शन इफेक्ट था, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद का इफेक्ट था। उसके बाद एक साइड वाइज फेज में देखिए, इट इज कंटिन्यू ना साइड वाइज फेज फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज, एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है, एंड ये है इसका ब्रेकआउट लेवल। इफ आई एम अ स्विंग ट्रेडर तो मेरे लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में है, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में है, एक फिर साइडवाइज फेज में, मतलब एक कंस्ट्रक्शन हो रहा, मतलब कि अगर ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट इज वेरी वेरी गुड।
सर फिबोनाची एक्सटेंशन किसी और दिन मैं बता दूंगा कैसे यूज करता है, या अगर आज टाइम है तो मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद ये एक अच्छा खासा साइडवाइज फेज में है। अब इसमें ब्रेकआउट आएगा if 181 के ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन हो गया, कंफर्मेशन भी आ गया मुझे कि नहीं चार्ट पे अच्छा लग रहा है। अब मेरे को एग्जीक्यूशन करना है। एंड व्हाट इज द एग्जीक्यूशन रूल? इफ इट इज सस्टेन अबव द 181.50 और क्लोजेस अबव द 181.50, दैट्स मीन ये कंफर्म कर रहा है कि देयर इज एक नेक्स्ट अच्छा अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है। स्टॉप लॉस आप कैसे लगते हो? आइदर जो मैंने कहा था, आप इसका ये ले सकते हो प्रीवियस जो इसका स्विंग लो है, और या तो प्रीवियस डे का लो को भी ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर ब्रेकअप कर दे इसके, तो आप इस वाले कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लो को भी ऐसे स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि अगर ये प्रीवियस डे के स्टॉप लॉस को हिट कर जाता है तो फिर ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको प्रीवियस डे के स्टॉप लॉस को भी ले सकते हैं, और अगर आपको उससे थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो तो ये कैंडल परफेक्ट कैंडल है फॉर द स्टॉप लॉस। चलते हैं हम लोग तीसरे स्ट्रेटेजी की तरफ। बेस स्ट्रेटेजीज पे ज्यादा नहीं करेंगे बात, क्योंकि बेस स्ट्रेटेजीज पे मिलेंगे नहीं स्टॉक्स, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे खासे कंपनी पे जब तक एक अच्छा करेक्शन नहीं आता ना, बेस स्ट्रेटेजीज पे स्टॉक्स आएंगे नहीं। द लास्ट वन इज द फ्यूनिक्स द रिवर्सल। ये बहुत अच्छा है, ये मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ। एंड अगर आपको वैल्यू बाइंग, और आपको बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के स्टॉक चाहिए तो इसमें मिलता है। अभी इसमें कोई नहीं है, बट इसको समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। इन इन फ्यूनिक्स स्ट्रेटेजी आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिन्होंने एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस पर एक रिवर्सल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ओनली। एंड कंफर्मेशन जब आप लोग चार्ट को देखेंगे देन इट विल कंफर्म कि इसमें रिवर्सल आता है कि नहीं आता। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। अब आते हैं इसमें, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड देख लेते हैं। रिस्क टू रिवर्सल 1:2। अब एक चीज गौर कीजिए, शॉर्ट को अगर हटा देते हैं हम लोग अपने ईगल को, तो बाकी दोनों के स्विंग बोल स्ट्रेटेजीज पे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, बिकॉज उसका मोमेंटम इज वेरी हाई, तो वो क्या होता है बहुत क्विक मूव कर सकता है अच्छे से। बट अगर आप बाकी दो में जा रहे हो तो मोमेंटम जो है ना वो कंपेयर टू ईगल थोड़ा लो होता है। तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 1:2 का रखा गया है, इज द मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड। ऑफ कोर्स इफ द मोमेंटम इज हाई यू कैन कंटिन्यू योर ट्रेड। आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ ट्रेड कर सकते हो और आप अच्छा खासा प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो। लेंथ ऑफ द ट्रेड इज सेम, 2 दिन से लेकर 30 दिन तक होता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट डे आपका टारगेट अचीव हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इट विल टेक टाइम टू गेट सम लेवल तक जाने के लिए उसको टाइम लग सकता है। दिस टोटली डिपेंड ऑन द मोमेंटम, ठीक है। इसको देख लेते हैं, क्लोजेस बिलो द लास्ट मंथ लो, क्योंकि एक अच्छे खासे प्राइस करेक्शन के बाद ही आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिनका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होगा और वो अच्छा खासा ऊपर जा सकते हैं। तो द फर्स्ट कंडीशन इज क्लोजेस बिलो द लास्ट मंथ लो, एंड द सेकंड इज सीसीआई इज बुलिश। ऐसे मैंने पहले भी कहा, सीसीआई इज द लीडिंग इंडिकेटर जो पहले इंडिकेट करता है कि इसमें रिवर्सल आ रहा है कि नहीं। विलियम परसेंटेज इज आल्सो ए लीडिंग इंडिकेटर व्हिच इंडिकेट कि इसमें अर्ली मूव हो सकता है, कि अर्ली आपको बता देता है कि इसमें क्या हो सकता है। एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो एक स्कैन है, कि एक अच्छा खासा स्टॉक गिर रहा था और सडनली उसमें बुलिंग इंगल्फिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक सडनली गिर रहा था और सडनली उसके बाद एक बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन होता है, जो कि ये बताता है कि लोअर लेवल में देयर इज अ बाइंग। एंड इफ द स्टॉक फाउंड क्या बोलते फाइंड्स डिमांड इन द लोअर लेवल्स ना, दैट्स मीन को रिवर्सल ले रहा है और उस लोअर लेवल को बेस बनाकर स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसमें स्टॉक्स में क्यों कोई नहीं आ रहा, इसको भी समझ लेते क्यों नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद जो रिवर्सल ले रहा है, ऑलरेडी मार्केट बोल रहे हैं, सारे सेक्टर ही अच्छा कर रहे हैं, तो इसीलिए इस स्कैन में इसमें कोई स्टॉक्स नहीं आ रहा। जैसे इसमें 5-10% का प्रॉफिट बुकिंग आएगा, आप इसको ले सकते हैं। देखिए, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो, ईगल का यूज आप कर सकते हो। व्हेन ईगल गिव यू द 100% या ऑलमोस्ट एक वेरी बहुत अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकता है। व्हेन द मार्केट इज बुल, 100% बुल, चारों तरफ बाइंग है, ईगल स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। सेकंड,
अगर एक बुल फेस के बाद एक साइडवाइज फेस आता है तो तब बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। एंड द फ्यूनिक्स जब एक अच्छे खासे अपमूव के बाद एक करेक्शन आता है 10-15% का, जिसको हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग के बाद फ्यूनिक्स रिवर्सल पे अच्छा पैटर्न करेगा। तो इसको ऐसे भी आपको सोचना है कि हर स्ट्रैटेजी जो है, मोमेंटम स्ट्रैटेजीज गिव यू द बेटर रिजल्ट व्हेन द मोमेंटम ऑफ द स्टॉक मार्केट यानी मोमेंटम ऑफ द होल मार्केट इज स्ट्रांग। तो कंटिन्यूएशन आपको तब काम करेगा जब एक अच्छे खासा बुक के बाद प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया, बट देयर इज अ साइड बाय स्पेस, ठीक है। एंड द रिवर्सल गिव यू द बेटर रिजल्ट व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट बुकिंग। तो ये तीन चीज को भी आपको लेके समझना होगा, ठीक है। सबको क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट कि ये जो तीन स्ट्रैटेजीज है, they are for the three different scenario in the market. If the market is bull, हर जगह buying है सर, if you are a swing trader or an intraday trader, go with the continuation strategy. Sorry, go with the momentum strategy. Continuation, अगर चार्ट में एक अच्छा खासा अपमूव है बट देयर इज अ नो प्रॉफिट बुकिंग, देयर इज अ नथिंग, देयर इज अ नो नेगेटिव डाइवर्जेंस इज देयर, तो कंटिन्यूएशन इज बेटर एंड रिवर्सल गिव यू द बेटर रिजल्ट बट देयर इज अ प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। क्लियर हुआ सबको कि ये तीन स्ट्रैटेजी आपको तीन डिफरेंट सिनेरियोस पे अच्छा रिजल्ट करेगी। इफ द मार्केट इज बुल एंड 100% बुल है, आप तब आप रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल स्ट्रैटेजीज पे स्टॉक फाइंड आउट करने का ट्राई करोगे, देन बस यू आर मेकिंग द मिस्टेक। then these strategies are good but they never give you the better result, because you have to understand the market scenario. When the market is good, strong, momentum is high, nifty new highs bana raha, then you have to go with the momentum strategies, ठीक है। क्लियर, ये तीन चीजें क्लियर हो गई सबको। सर मेजर स्टॉक्स पे कीजिएगा अगर आप बिगनर, जो भी ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर्स हो, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है सर, कि बिगनर मेजर स्टॉक्स पे ही क्या कीजिए। आपके फिल्टर चेंज मैं कर दूंगा, ठीक है, बट ये मेरा सजेशन है कि अगर आप बिगनर हो, अगर आप 1-2 साल से सिर्फ ट्रेड करो ना। थैंक यू सोनिया जी, सोनी जी, आपको क्लियर हो गया। हाँ, फिर बिगनर स्ट्रैटेजी ट्रेडर आपको मेजर स्टॉक्स पे कीजिए, फंसने का डर कम होता है। अब हम लोग बुल स्ट्रैटेजीज पे मैं थोड़ा बात कर लेता है। नेगेटिव स्टॉक्स तो उसमें नहीं होंगे, बट इसको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। स्विंग बेस्ड स्ट्रेटेजीज, तो यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों का कि सर कैश मार्केट में तो ऑलरेडी स्विंग स्ट्रेटेजी बंद हो चुकी है, कैश सेल्स तो बने, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते बने, तो फिर स्ट्रेटेजीज का क्या है? स्ट्रेटेजीज का तब आपको यूज ऐसे करना है, आइदर इफ यू आर एफएनओ प्लेयर देन तो आपको इस पर आप नेगेटिव पोजीशन बना सकते हो, बट इफ यू आर ए कैश मार्केट प्लेयर, आप इन्वेस्टर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, तो स्विंग बेस्ड स्ट्रेटेजी से एटलीस्ट आप उसका यूज इस तरह कर सकते हो कि एग्जिट देन री एंटर। मीन्स अगर आप किसी स्टॉक में प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केट। अगर आप प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते हो सर इन अ राइट टाइम, आपका पैसा नहीं बनेगा। तो स्विंग बेस्ड स्ट्रेटेजीज का यूज, स्विंग बेस्ड स्ट्रेटेजीज का यूज आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी कर सकते हो। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि एग्जिट, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड से एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें भी तीन है, फैल्कन, रेवन एंड सिगल। फैल्कन जिसका मोमेंटम इज वेरी हाई, सर बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा सर, आप लोग स्टॉक्स पे, अगर कोई स्टॉक्स आता है बिल्कुल उस पर एक्सप्लेन करें। बेरिश स्ट्रेटेजी पे ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट में बोल है, जैसे नो साइन कि यहाँ से 20-15% का करेक्शन आ सकता है, ठीक है। हाँ, पर आप लोग कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोवर्ट पे पार्ट पे चलते। फैल्कन में क्या, जिसका मोमेंटम इज वेरी हाई इन अ नेगेटिव साइड, इन जब उसमें स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है, कंटिन्यू अगर कोई स्टॉक गिर रहा है एंड मेकिंग द न्यू लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, ठीक है, लोअर हाइज एंड न्यू लोअर लोज बना रहा है, दैट मींस द मोमेंटम ऑफ द करेक्शन और मोमेंटम ऑफ द डाउनफॉल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एग्जीक्यूशन का भी रूल सेम है, 1:1 देखेंगे, 1:2। आप ₹1 के लिए ₹2 तक का भी टारगेट देख सकते हो, और इसका लेंथ ऑफ द ट्रेड इज आई थिंक 2 दिन से 30 दिन तक का होता है। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। क्लोजेस विद इन 52 वीक लो जोन, अपने 52 वीक लो के जोन के आसपास होना होगा,
स्टॉक अंडर परफॉर्म करे बेंचमार्क बोथ इन द 1 वीक एंड 3 मंथ, व्हाई 1 वीक एंड 3 मंथ? हम लोग कुछ और भी दे सकते हैं, 1 वीक जो कि एक शॉर्ट टर्म स्टॉक का मोमेंटम या एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है, ठीक है। एंड 3 मंथ जो उसका एक ओवरऑल एक क्वार्टर का मोमेंटम बता रहा है कि स्टॉक्स मोमेंटम में वीक है या नहीं, ठीक है। स्टॉक अंडर परफॉर्म सेक्टोरियल इंडेक्स, जैसे कि मैंने कहा कौन स्टॉक होता है जो बेंचमार्क में होता है, सेक्टोरियल इंडेक्स में भी होता है, तो वो भी उसके अंडर परफॉर्म करे बोथ इन 1 मंथ एंड 1 वीक एंड 3 मंथ। अच्छा, आर एस strongly underperform sectorial index, both SRS below zero, aggressive यूज, जैसे मैंने कहा कि आप स्विंग बेस्ड स्ट्रेटेजीज का यूज एफएनओ ट्रेड के लिए भी कर सकते हैं। तो जब बोथ एसआरएस एंड एआरएस इज बिलो जीरो, एग्रेसिव न्यू शॉर्ट बन रहा है, तो ये कंडीशन बनता है जहां पर अच्छा खासा डाउनफॉल आ रहा है। टाइम ड्रिवन, ये कंटिन्यूशन पैटर्न मींस एक साफ डाउनफॉल के बाद एक साइडवेज फेज में आता है और फिर से अपने बेस को तोड़ के न्यू लोस की तरफ जा रहा है, तो इसको रेवन बोलते हैं। कंटिन्यूशन पैटर्न में, कंटिन्यूशन स्ट्रेटेजी में आता है। इसका भी सेम है स्ट्रेटेजी, 2 दिन से लेकर 30 दिन तक का कर सकते हैं आप, और इसका रेशियो 1:2 है। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। Closes below previous low, high decrease in 6 months, RSI is trending down, William percentage R is bearish. सर मैं बेरिश स्ट्रेटेजीज पे इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी मार्केट बुल है, तो उससे बेटर मैं स्विंग वाले थी कि मैंने पहले ही कहा मार्केट इज योर फ्रेंड, आप इस टाइम फोकस करना है आपको बुल स्ट्रेटेजीज पे, तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा वेबिनार का जो टाइम है वो बुल स्ट्रेटेजीज पे ही देना चाह रहा हूँ। स्विंग स्ट्रेटेजीज को लेके 2 मिनट है, किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है स्विंग स्ट्रेटेजीज पे। चलते तो पोजिशनल स्ट्रेटेजीज पे। पोजिशनल बुलिश स्ट्रेटेजीज एंड पोजिशनल बेरिश स्ट्रेटेजीज है। सर्फिंग पोजिशनल है तो इसमें जो टाइम फ्रेम है आपका 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का हो सकता है। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है जिनको थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट, देखिए एक एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। इंट्राडे ट्रेडर्स का क्या होता है कि उनको डेली इनकम करना है, डेली प्रॉफिट करना है, डेली करना है। स्विंग ट्रेडर्स जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज मिलता है, जिनको अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करते हैं मिलता है। पोजिशनल ट्रेडर एक्चुअली होते हैं जो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, इनको नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी लेस, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड इनका बहुत कम होता है, बट द परसेंटेज और द प्रॉफिट का जो परसेंटेज इज वेरी हाई। अगर पोजिशनल ट्रेडर हो और आप पोजिशनल स्ट्रेटेजीज का यूज इस तरह करते हो, द नंबर ऑफ ट्रेड फॉर ए पोजिशनल ट्रेडर इज एवरी टाइम आपको वो कम ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर ज्यादा ट्राई करोगे आप फंस सकते हो, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस होता है ना, वो कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स इज बिग। तो अगर आप ज्यादा ट्रेड करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप प्रॉफिट को लूज कर दोगे ज्यादा है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स का जो पहला एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि द नंबर ऑफ ट्रेड शुड बी लेस, ठीक है, आप कंपेयर टू द इंट्राडे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, बट प्रॉफिट उसका अच्छा होना चाहिए, आरआर इज बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, सर्फिंग मोमेंटम मतलब ऐसे स्टॉक्स आ रहे जो कंटिन्यू समुद्र में जैसे आता है ना सर्फिंग, उस टाइप के समुद्र में जो सर्फिंग करते कि एक वेव बना, वेव ऊपर की तरफ गया, फिर एक छोटा सा करेक्शन आया, फिर वेव ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो कंटिन्यू मोमेंटम जो है हायर हाई की तरफ जा रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो आप 1 महीने से 3 महीने तक का ले सकते हो, यानी एक क्वार्टर तक का ट्रेड कर सकते हो। स्कैन्स पे देख लेते हैं। हाई डिलीवरी क्वांटिटी, हाई इंक्रीज इन 1 मंथ, हाई इंक्रीज इन 3 मंथ, हाई इंक्रीज इन 1 ईयर, मीन अपने लास्ट क्वार्टर पे और एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्लोजेस अब अपर बॉलिंगर बेंड, अपर बॉलिंगर बेंड का जो सर्कल है उसके ऊपर वो बंद कर रहा है, और जो कंसिस्टेंट उसका सेल्स में ग्रोथ हो रहा है। तो अगर ऐसा सारे पैरामीटर मिलता है तो बहुत अच्छा सर्फिंग का स्ट्रैटेजी मिलता है। इसमें एफटीएस है, जो एफटीएस देखिए स्विंग में भी आया था सर, नहीं इंटरडे में भी आया था और इसमें भी है। एफटीएस पे नहीं बात करते, किसी और जाइडस वेलनेस पे कर लेते हैं, जाइडस पे देख लेते हैं। इसका एंट्री का रूल अलग है, इसलिए मैं इसका चार्ट को ओपन करता हूँ। जाइडस ये देखिए बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत अच्छा कंफर्मेशन भी है। अपना जो प्रीवियस स्विंग है के बाद उसने छोटा सा
प्रॉफिट बुकिंग दिखाया तो फिर उसने तोड़ के दिया। अब देखिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक चार्ट कैसे स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, जब उसका प्रीवियस कैंडल जो होता है ना, या जो उसका प्रीवियस आप क्लोजिंग कैंडल उसको देखो, इसका वॉल्यूम कितना अच्छा है, क्या स्पाइक है, तो ये बहुत परफेक्ट बाइंग है। अच्छा, फॉर पोजिशन ट्रेडर उनका जो बाइंग होता है ना, देयर इज अ बेस्ट सजेशन कि आपको आपको कभी भी एक प्राइस पॉइंट पे बाई नहीं करना चाहिए। देयर मस्ट बी ए जोन इफ यू आर अ पोजिशन ट्रेडर, ठीक है, देयर मस्ट बी ए बाइंग जोन कि आपका वो रेंज हो सकता है किस पर बाई करोगे, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडर का जो लेंथ ऑफ द ट्रेड इज वेरी बिग देन द स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर। 1 महीने से 3 महीने तक का आप लेते हो, तो बाइंग जो बनाओगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसको एवरेज कर सकते हो। आप एक टाइम पे सारा पैसा अगर बाई कर लोगे ना सर, तो आपका जो एक एवरेजिंग का जो एक अपॉर्चुनिटी रहता है वो मिस कर देते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ये होता है कि आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि इफ अ पोजिशन ट्रेडर देयर मस्ट बी ए बाइंग जोन। आपको जोन बना लेना चाहिए 3-4% का, कि जिस प्राइस टैग पे आप उसको बाइंग करोगे। आपने एक बार बाइंग किया ब्रेकआउट पे, सेकंड जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि एवरेज आप कर सकते हो, आप एवरेज करोगे। इसका स्टॉप लॉस का रूल क्या है, स्टॉप लॉस जो पोजिशन ट्रेडर है वो हमेशा प्रीवियस वीक का लो लेंगे। अगर प्रीवियस वीक का लो नहीं है, बहुत दूर है, आपको लग रहा है कि नहीं सर ये बहुत दूर है, मेरा पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा एक परसेंटेज एज ए स्टॉप लॉस चला जाएगा, देन आप उस वीक का लो को एज ए स्टॉप लॉस ले सकते हो। ठीक है, दो तरीका, आइदर आप प्रीवियस वीक का लो के ले लो, या अगर आपको लगता है स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जा रहा है सर, देन आप इस वीक का करंट वीक का स्टॉप जो वीक का लो उसको ले लो। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंट्री पॉइंट, ये आप एक प्राइस जोन बना लो, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। कंटिन्यूशन आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि एक हफ्ते से 1 महीने से 3 महीने तक का ट्रेड है। ठीक है, 1 महीने से 3 महीने तक का ट्रेड है, दैट मीन्स कि अगर आपको कंटिन्यू करना 3 महीने तक का, आप इसमें एग्जिट कंटिन्यूशन का रूल क्या होना चाहिए, देयर इज अ कंटिन्यूशन का रूल जो पोजीशन ट्रेडर्स के लिए इन एवरी स्ट्रेटेजी। जब कभी भी अगर वो स्टॉक अपने अप ट्रेंड में या कंटिन्यू बाइंग जब हो रहा है, कंटिन्यू एक रैली चल रही है और अपने हाइस को, जो उसने मान लीजिए सपोज कीजिए आप इसी स्टॉक को ले लेते हैं, ये इसका हाई है 2123.95, मैं 2124 पकड़ता हूँ, 2124। अगर ये 2124 के इस लेवल पर अगर मेरा बाइंग और 2124 है, और अगर इसने इस कैंडल के लो को तोड़ के 2 दिन या 2 से अधिक बार, ठीक है, 2 टाइम्स या मोर देन 2 डेज अगर क्लोज कर देता है, तो मेरा कंटिन्यूशन नहीं होगा। मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, इफ यू आर पोजिशनल ट्रेडर, अगर आपका जो कैंडल ने हाई बनाया, जो उसका प्रीवियस रिसेंट हाई है, उस कैंडल के लो के नीचे एटलीस्ट उसने 2 दिन बंद कर दिया ना सर, इट्स टाइम टू एग्जिट। वो आपका कंटिन्यूशन नहीं करना, आप एग्जिट कर जाओ, अदरवाइज आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है ना वो लॉस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया सबको। ओके, सो हम लोग चलते हैं दूसरे वाले पे। सर्फिंग के बाद है रोइंग या कंटिन्यूशन पैटर्न। लास्ट पॉइंट मैंने कहा सोनी जी, कि सपोज कीजिए आपने एक पोजीशन ट्रेड लिया और वो कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है, और जैसे उसने एक हाई ऐसे पॉइंट पे बनाया जिस कैंडल के लो के नीचे अगर वो 2 दिन सस्टेन कर जाता है, दैट मींस फॉर पोजीशन ट्रेड आपका एग्जिट आ चुका है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इस वाले में है, किसी ने कहा था शूटिंग स्टार को लेकर, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए जैसे इससे शूटिंग स्टार बना है, ये इसका सबसे, अगर मान लो मैं यहाँ पर बाई किया होता और ये इसका हाई है, ठीक है, ये इसका हाई है, रिसेंट हाई, मैं आप लोग इसको मत देखो, इस वाले पोर्शन को नहीं देखा, इस वाले को, ये इसका रिसेंट हाई, ये इसके लो के नीचे 1 दिन बंद किया एंड द कंटिन्यूएशन 2 दिन बंद कर दिया, एग्जिट आ गया। क्योंकि देखिए अगर आपने यहाँ बाई किया वो वापस से आपके बाइंग जोन के आसपास आ गया, तो एग्जिट कर जाना है। अगर वो अपने रिसेंट हाई के लो कैंडल के लो के नीचे 2 दिन बंद कर जाए, पोजिशन ट्रेडर एग्जिट कर सकता है, वो कंटिन्यू करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है सोनी जी, आपको समझ में आ गया।
रोइंग पे चलते हैं। आशीष जी मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। रोइंग कंटिन्यूशन ऐसे स्टॉक्स आएंगे जो कंटिन्यू एक अच्छे खासे अप पे थे, फिर एक साइडवाइज में चले गए, और उसके बाद एक साइडवेज फेज में जाने के बाद देयर इज अ बाइंग कमिंग, और फिर से वो स्टॉक बाइंग आ रहा है और वो अपने एक कंस्ट्रक्शन फेज को ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। इसमें आपका फ्लैग भी मिल सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेटी सर, मैं आपका फिबोनाची एक्सटेंशन बता के जाऊंगा, आप डोंट वरी, मैं उसको एक्सप्लेन करके ही जाऊंगा सर। मैं इसको खत्म कर दूं। रोइंग इन द कंटिन्यूएशन पैटर्न व्हेन द स्टॉक्स अगर एक अच्छा खासा अपमूव के बाद एक साइडवेज फेज में जाता है एंड अगेन उसमें बाइंग आता है और उस रेंज को ब्रेकआउट देके वो फिर से एक अच्छा खासा अपमूव देता है। ठीक है, इंट्रो वाले पार्ट पे चलते हैं। 1 महीने से 3 महीने तक का ट्रेड बनता है, लेंथ ऑफ द ट्रेड, एंड द रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:3। स्कैन्स पे थोड़ा बात कर लेते हैं, अगर कोई स्टॉक होगा तो उस पर एक्सप्लेन करेंगे। बेरिश बुलिश जो आपका पोजिशनल बेस्ड स्ट्रेटजी है, उस पर मैं स्टॉक्स पे नहीं बता पाऊंगा, सॉरी, टाइम लिमिट है, तो उस पर मैं किसी और दिन डिस्कस कर। परफेक्ट मैच में कुछ नहीं, एबीपी इंडिया है। स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। अच्छा, क्लोजेस विद इन 52 वीक हाई जोन, 52 वीक हाई जोन के आसपास होगा तभी तो कंटिन्यूएशन होगा। एक अच्छा खासा अपने के बाद एक साइडवेज फेज में चला गया, उसके बाद उसने फिर से इस रेडी टू गिव अ न्यू ब्रेकआउट। द सेकंड इज NR4, जिस कैंडल पे ब्रेकआउट हो रहा है द कैंडल मस्ट बी NR4। NR4 मतलब द स्मॉलेस्ट इन द लास्ट 4 कैंडल। प्राइस नहीं, सुपर ट्रेंड सपोर्ट। सुपर ट्रेंड एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इफ फॉर अ पोजिशनल ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर यू कैन यूज सुपर ट्रेंड एज ए वेरी गुड एज ए टूल, क्योंकि वो बहुत अच्छा बताता है। तो प्राइस लीडिंग सुपर ट्रेंड सपोर्ट के आसपास है, इट गिविंग द परफेक्ट बाइंग। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है ईयर ऑन ईयर, यानी एक साल का कंपैरिजन नेक्स्ट ईयर से कर रहे हैं। हाई इंक्रीज इन क्वार्टर सेल्स, कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर ये सारे इंडिकेटर्स मैच कर रहे हैं तो ये परफेक्ट ग्रोइंग कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरफ इंडिकेट करता है। फिशिंग ये मेरा फेवरेट है, तो इसमें मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा ही दूंगा, बहुत मेरा फेवरेट है। जो भी पोजिशन ट्रेडर फिशिंग करना चाहते हैं, फिशिंग का मतलब भी लोग जानते हैं कि आपको गहरी मछली की गहरे पानी में मछली पकड़ना होता है, तो ये बहुत अच्छा वैल्यू बाइंग भी बोलते हैं इसको। अगर इफ फॉर अ पोजिशन ट्रेडर इसको बहुत अच्छा वैल्यू बाइंग भी बोलते हैं। एक ऐसा स्टॉक्स जो कंटिन्यूस डाउनवर्ड फेज में था, एक अच्छे खासे डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद उसने एक बेस फॉर्म किया और बेस से उसमें फिर से न्यू बाइंग आ रही है और वो फिर से अपने ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल कर रहा है। ठीक है, इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी मिल सकता है, आपको राउंडिंग बॉटम भी मिल सकते हैं, तो ऐसे कुछ रिवर्सल वाले पैटर्न है जो आपको इसमें मिलने के चांसेस होते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:3। इसमें आप अगर ₹1 का रिस्क ले रहे हो तो टारगेट मस्ट बी ₹3। लेंथ ऑफ द ट्रेड इज 1 मंथ टू 3 मंथ है। स्टॉक्स को एंड इस पे स्कैन्स पे बात कर लेते हैं। क्लोजेस विद इन 52 वीक लो, जो 52 वीक लो के आसपास है, बट उसका रिवर्सल का सिग्नल कैसे देता है? रिवर्सल का सिग्नल देगा क्लोजेस अब लास्ट वीक हाई, अपने लास्ट वीक के ऊपर अगर बंद कर देता मींस अब उसमें बाइंग आ रही है। सुपर ट्रेंड सिग्नल चेंज टू बाय, मतलब रेट से ग्रीन की तरफ हो रहा है। एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, जो एफएनओ ट्रेडर उनको पता है कि शॉर्ट कवरिंग में मींस क्या होता है। मैं इसका मैं छोटे से एक्सप्लेन करता है। शॉर्ट कवरिंग मींस कि जब लोअर लेवल्स पे एफएनओ के सौदे बंद होने लगते हैं एंड द प्राइस इज गोस अप, स्पाइक्स आता है, दैट्स मीन कि उसमें शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। इंक्रीज इन डीआई शेयर होल्डिंग, जो डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड जो है वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उस पर बाइंग कर रहे हैं। तो अगर बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड है तो रिटेल को भी इंटरेस्टेड होना चाहिए। पोजिशनल बेस्ड स्ट्रेटेजीज पे मैं जस्ट 2 मिनट दे रहा हूँ, इस पर अच्छे से डिस्कशन किसी और दिन कर लेंगे क्योंकि टाइम बर्डन है, कुछ क्वेश्चंस भी लेना है। इसमें भी 3 तरह का ट्रेड है: मोमेंटम, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, सीकिंग, ग्लिडिंग एंड स्लाइडिंग। इनका अब इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, सबका जो कॉन्सेप्ट है सेम है एज ए इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर। सीकिंग मतलब ऐसे स्टॉक जो कंटिन्यू न्यू लोस बना रहे, न्यू लोस का फॉर्मेशन कर रहे, कंटिन्यू उसमें कहीं बाइंग नहीं है। ग्लिडिंग मतलब ऐसे स्टॉक जो एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद एक साइडवेज फेज में चले जाता है और फिर से अपने बेस को तोड़ के ब्रेकडाउन दे के फिर से एक न्यू लोस की तरफ जाते हैं। एंड रिवर्सल इसमें मैं 1 मिनट दे देता हूँ क्योंकि इसमें भी स्टॉक्स मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, मैंने कहा ना मिल सकते। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दो स्टॉक्स इसमें आएंगे जो एक अच्छे खासे अप में थे, अब उनमें या तो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है और या तो ट्रेंड रिवर्सल ले सकते हैं। ठीक है, या तो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है या तो ट्रेंड रिवर्सल ले सकते हैं।
तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम लोग कि ये हम लोग का एग्जिट स्ट्रेटेजी बन जाएगा। जिनका प्रॉफिट में अच्छा खासा, कोई जो ट्रेड प्रॉफिट में है वो इसको एग्जिट स्ट्रेटेजी की तरफ भी यूज कर सकते हैं। स्कैन देख ले सकते हैं कैसे। तो देखिए जैसे कि मैंने क्लोजेस विद इन 52 वीक हाई, 52 वीक हाई के आसपास बंद है, मतलब स्ट्रॉन्ग तो था, बट अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने का पॉसिबिलिटी है, और या तो डाउन साइड एक डाउन ट्रेंड आने का पॉसिबिलिटी है। क्लोजेस अब इसमें रिवर्सल कैसे होता है, अगर स्टॉक अपने 50 वीक हाई के जोन के आसपास है बट अपने प्रीवियस वीक के लो के नीचे बंद कर रहा है, मींस उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो चुका है। सुपर ट्रेंड सिग्नल इज सेंस टू सेल। एग्रेसिव लॉन्ग कवर जो है, लॉन्ग कवर हो रहा है, मतलब हाई पे भी अगर आके लॉन्ग कवर हो रहा है, मींस की जो एफएनओ ट्रेडर्स है, जो बिग प्लेयर्स है, उनका इंटरेस्ट स्टॉक्स पे कम हो रहा है, और डीआई जो अपना शेयर होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं। क्वार्टरली क्वार्टरली उसका रिपोर्ट निकलता है, तो वो आप देख सकते हैं कि डीआई अगर चेंज कर रहा है तो मींस उसमें अगर कोई स्टॉक 52 वीक हाई पे भी है और डीआई उसे एग्जिट कर रहा है, मींस उसमें प्रॉफिट बुकिंग या एक माइनर करेक्शन या एक मेजर पॉसिबिलिटी। सावधान रहना चाहिए, अगर किसी भी वीक अपने प्रीवियस वीक के लोग के नीचे बंद करना तो एग्जिट कर लेना चाहिए। आज के लिए थैंक यू, स्ट्रैटेजीज पे इतना ही था। अब मैं 5 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को ले सकते हैं। तो एक तो सर का बीटिक सर का था, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर एलियट वेव के बारे में पूछ रहे हैं, स्ट्रैटेजी एलियट वेव के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, फिर भी मैं छोटे में बता देता हूँ क्योंकि एलियट वेव मेरा भी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट टॉपिक है। अभी अगर देखें तो ना मिड टर्म वी आर इन अ फिफ्थ वेव, अगर हम मिड टर्म की बात करें। एंड इफ यू टेक कंसीडर लॉन्ग टर्म की, अगर लॉन्ग टर्म में बात करें, जब से निफ्टी आया है तब से अभी हम लोग थर्ड फेज में है। ठीक है सर सुनील जी, बस इससे ज्यादा नहीं, वेब में बता दो। शॉर्टर टाइम मिड टर्म फ्रेम में हम लोग फिफ्थ फेज में आ गए, और इन शॉर्टर टाइम फ्रेम हम लोग सॉरी इन लॉन्गर टाइम फ्रेम, अगर आप जब से निफ्टी आए तब से हम लोग थर्ड फेज में। किसी एक का सर का क्वेश्चन था, बीटी सर का शायद, थैंक यू। कैसे हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करते हैं, बीटी सर आप हैं, मैं बता देता हूँ तब। यस, ये देखिए, इसका रूल होता है ना, जब आपके ऊपर का लेवल नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर का लेवल नहीं है, ऊपर का लेवल नहीं है इन द सेंस कि आपको ऊपर का कोई रेजिस्टेंस है, तब उस केस में फिबोनाची रूल है, जो आपको प्रीवियस लो दिख रहा है ये, जो इसका रिसेंट लाइफ टाइम हाई था, जो लास्ट हाई था वो, और उसके बाद जहां से उसने फिर से रिवर्सल लेके चेंज किया, ठीक है, ये यहाँ से चेंज किया। बेटी सर समझ में आ गया, इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक जो आपका प्रीवियस स्विंग लो है, सेकेंड जो आपका प्रीवियस 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई है, थर्ड जो उसका रिसेंट स्विंग लो जहां से उसने रिवर्सल लिया। तो इस तरह फिबोनाची एक्सटेंशन में यूज करता है। बेटी सर आपको एक्सप्लेन हो गया सर? किसी और के स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? थैंक यू। तपन सर का क्वेश्चन है, फाइंडिंग स्टॉक पर बीटी एसटी। सर आप उसमें ईगल का यूज कर सकते हैं, स्विंग स्ट्रेटेजीज में ईगल का यूज आपको बीटी एसटी अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सोनी जी, थैंक यू। थैंक यू हरी सर। NR4 मीन्स होता है जो सर लास्ट फोर जो कैंडल होते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला होता है वो NR4 है। NR4 में हम लोग एक बहुत अच्छा एक टॉपिक भी रिटर्न है, आप गूगल में जाके करिएगा सर, इंग्लैंड मार्केट का एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखे हो। सॉरी सर बीटी सर, किसी स्टॉक्स पे तो नहीं बता सकता, आप कुछ और हो तो। थैंक यू श्याम सर, थैंक यू। अजीत कुशवाहा जी, क्या सर बताऊं, मैं नहीं समझा। थैंक यू सर, थैंक यू सुकेश सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बट वेरी फर्स्ट टाइम सर, थोड़ा टाइम बटन इसलिए। लोकेश सर देखिए, आप अगर स्टॉकेज में है, स्टॉकेज का सोशल का मेंबर है, आप उसमें आगे पूछिए, हम होल्डिंग मैंने के बारे में तो एक्सप्लेन कर देंगे। इंटरडे स्टॉक फाइंडर अदर देन द इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो दिया हुआ है, इंटरडे फाइंडिंग आप कैसे कर सकते हो?
थैंक यू बॉबी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, टाइम बर्डन तो एक थोड़ा सा है ही है। थैंक यू पंकज सर, थैंक यू, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। सोनी जी फिबोनाची एक्सटेंशन में बता चुका हूँ। फिबोनाची एक्सटेंशन पे ईलर्न मार्केट का एक बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। मैं जस्ट एक आपको बता दे रहा हूँ। उसमें 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है, पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि उसका ऑलरेडी वो 52 वीक हाई और लाइफ टाइम हाई के पास हो। तो फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करने का पहला लुक है लाइफ टाइम हाई के पास है। उसका 3 कंडीशन होता है। पहला जो स्विंग लो, सेकंड 52 वीक हाई, थर्ड जहां से रिसेंट उसने स्विंग लो बना के रिवर्सल लिया है। सर पोजिशन स्ट्रेटेजी में एंट्री कैसे? सर पोजिशन स्ट्रेटेजी में अजीत जी आपका पोजिशन स्ट्रेटेजीज में एंट्री ले सकते हैं अगर वो स्टॉक अपने स्विंग, प्रीवियस स्विंग हाई और जिस कैंडल में वो आया है स्कैन पे, उसके हाई के ऊपर एटलीस्ट एक दिन बंद कर जाए। इसमें 2 घंटे वाला रूल नहीं है, एटलीस्ट एक दिन बंद कर जाए विद वॉल्यूम, तो आप उसमें पोजिशनल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक। सेकेंड, पोजिशनल स्ट्रेटेजी में एंट्री के लिए आपको किसी एक पॉइंट से बेटर रिजल्ट देगा इफ यू आर गोइंग विद अ बाइंग जोन। आप एक 3% या 5% का बाइंग जोन बना लीजिए। इफ यू आर पोजिशनल स्ट्रेटेजी ट्रेडर, आपको पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं करना था, बाइंग जोन बनाकर ट्रेडिंग कीजिएगा, इज बेटर। ठीक है जीत जी, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मजगांव डॉक तो सर ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका, अब तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है। थैंक यू जितेंद्र सर, थैंक यू, आप सबको अच्छा लगा। थैंक यू सर, रोहित सर थैंक यू आशीष जी थैंक यू। थैंक यू, कैन रिपीट क्विकली? क्या शिवा सर, क्या रिपीट करूं क्विकली, क्या रिपीट कर दूं आपके लिए? फिबोनाची सर, फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज वही किया जा सकता है जब वो 52 वीक हाई ने लाइफ टाइम हाई के आसपास हो और आपको नेक्स्ट लेवल नहीं पता है, तो उस केस में फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज किया जा सकता है। फिबोनाची एक्सटेंशन पे ई-लर्न मार्केट पे देयर इज अ वेरी बेटर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। प्लीज शिवाजी गो टू द ई-लर्न मार्केट, आप वहां पे फिबोनाची एक्सटेंशन टाइप कीजिए। देयर इज अ बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया व्हिच हेल्प यू द कि आपको अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छा करेगा। शुभजीत सर, वो बोल रहे थे सर, रिकॉर्डिंग क्लियर है। सो मैं अभी मैं ऐसे समझ लूं कि आपको क्वेश्चन नहीं स्ट्रेटेजीज पे, तो हम लोग फिर नेक्स्ट जब मिलते हैं तो उसको पोजिशन पे हम लोग फोकस करेंगे। सुपर, थैंक यू सर, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू। क्लियर सर, थैंक यू सोनी जी, क्लियर हो गया आपको, थैंक यू। सो एंड कर सकते हैं हम लोग, बाय। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। थैंक यू, बाय सर, बाय। When could you explain please? Next के next week मैं फिर explain करूँगा लोकेश जी। Bye. Thank you sir, thank you. All right, so we end the session, Raju ji. जी बिल्कुल 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 end कर सकते हैं। All right, thank you, Raju ji. You were जी, amazing today, and we loved the feedback जो यहाँ पर आया है, and we जी, look जी, forward कि आप बिल्कुल। दोबारा जल्दी सेशन लें हमसे। मैं बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।